السلام علیکم۔ ایک کمپلیٹ ناول آپ کے لیے لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے ہم بھی کتنے سادہ تھے، رائٹر راحت جبیں۔ تو پھر سن لیجئے۔ امی کہتی تھی میری دونوں بیٹیاں نمونہ ہیں، اور وہ یہ بات انتہائی دلگیر رنجیدہ لہجے میں آہیں بھرتے ہوئے کہتی تھیں۔ دونوں کی کوئی کل سیدھی نہیں، اللہ نے شکل اچھی دی تھی، تھوڑی عقل بھی دے دی ہوتی۔ ان کی یہ بات سن کر نور تو ناک سے پھسلتی اینک ٹھیک کرتے مدبرانہ انداز میں مسکراتی اور موٹی سی کتاب میں گم ہو جاتی، مگر اینا کو امی کی اس بات سے سخت اختلاف ہوتا تھا۔ کمر کس کر بحث پر آمادہ ہو جاتی۔ ہم جیسی بیٹیاں تو چراغ لے کر ڈھونڈیں تو بھی نہ ملیں۔ ٹھیک، امی فوراً تائیدی انداز میں گردن ہلاتی۔ تمہاری جیسی کوئی اور ہوں تو ہی ملیں۔ اپنی اس انفرادیت پر پوری طرح خوش بھی نہ ہو پاتی کہ امی اپنا جملہ پورا کر دیتی۔ پھوڑ، بدتمیز، بے عقل، ایک نظر امی کو دیکھتی اور سنجیدگی سے کہتے ہیں بیٹیاں ماں پر جاتی ہیں۔ امی اندر ہی اندر تل ملاتی، بظاہر ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی کاش۔ آپ بہت ناشکری ہیں امی، وہ چڑھتی، تب تک امی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا۔ ہاں، ایسے کون سے گن ہیں تم دونوں میں، نہ صبر نہ برداشت، نہ گھرداری کا سلیقہ، نہ لوگوں سے برتنے کا طریقہ۔ ایک وہ محترمہ جنہیں سارا دن ان موٹی موٹی کتابوں کو چاٹنے سے فرصت نہیں، نہ چہرے پہ کوئی رنگ رہا، نہ سر پر کوئی بال۔ ایسے میں وہ محترمہ موٹی سی کتاب سے نظر ہٹا کر امی کو دیکھتی اور مدبرانہ انداز میں فرماتی۔ سوئفٹ کہتا ہے جب کوئی ذہین ہستی اس دنیا میں آتی ہے تو تم اس کو اس نشانی سے پہچان سکتے ہو کہ تمام کن ذہن اپنا ایک گروہ بنا کر جس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں۔ جہنم میں جائے تمہارا یہ سونف سپاری جس نے یہ نہیں بتایا کہ ماں کا کن ذہن کہنا کیسی بے ادبی ہوتی ہے۔ امی کو جلال آ جاتا تو ان انگریز فلاسفروں کو کوستے ماں کے ادب احترام پر سیر اصل لیکچر پلا دیتی۔ نور ہکا بکا قدرے خجل سے ہو کر ہنستی، ذہن سونف سپاری میں الجھ جاتا۔ اور ایک یہ میری چھلاوا ہے۔ امی پلٹی، مگر وہ واقعی کسی چھلاوے کی طرح غائب ہو جاتی۔ اب اسے واقعی ڈھونڈا جا سکتا تھا آم کے درختوں کی گھنی شاخوں میں کیریاں توڑتے ہوئے، ٹیرس پر لٹک کر پڑوسیوں کے بچوں سے چھیڑ خانی کرتے ہوئے، فون سے چمٹے کیبل کے چینل سرچ کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ اسے صرف یہی کام تھا، کام تو اسے سارے آتے تھے۔ موڈ میں ہوتی تو امی کو پلنگ پر بٹھا کر خدمت کرتی، وہ چلاتی رہ جاتی بھائی مجھ سے یوں ہاتھوں توڑ کر نہیں بیٹھا جاتا، مگر وہ سنتی نہ تھی۔ کچن سارے گھر کا انتظام یوں مہارت سے سنبھالتی کہ اپنی جگہ سے کوئی چیز نہ ہلتی۔ نت نئے چائنیز پاکستانی کھانے بنتے بقول سعد۔ اس گھر کا سب سے بہترین دور وہی ہوتا ہے۔ پھر اس کا موڈ بدل جاتا، کوئی تخلیقی کام کرنے کا خیال آتا تو نت نئے منصوبے بناتی۔ کبھی کپڑوں کی ڈیزائننگ شروع ہو جاتی، کبھی گھر کے ڈیکوریشن ہوتی، کبھی خود کو ساتھ کے ان کا جانشین تصور کرتے رنگوں سے کھیلنے لگتی۔ کوئی تھرل ہو، کوئی ایڈونچر، یار زندگی میں کچھ تو نیاپن ہونا چاہیے۔ اور جس سے ہی بات کہی جاتی تھی اس کے لیے سارے تھرل، سارے ایڈونچر، سارا نیاپن محض ایک اچھی کتاب میں تھا۔ امی سر پکڑ کر رہ جاتی۔ ان کو ہی جانا ہے آگے نئے لوگوں میں، نہ کوئی طریقہ نہ سلیقہ، ناک کٹوائیں گی میرے۔ ارے نور الصبا، اٹھ بیٹا، بال بنا، اچھے کپڑے پہن، اپنی کسی سہیلی کی طرف ہی ہو آؤ، یا چلو تمہیں تمہاری خالہ کے گھر لے چلتی ہوں۔ وہ کتاب سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھتی۔ ابھی کل ہی تو کپڑے بدلے تھے، سہیلی سے کالج میں روزی مل لیتی ہوں، خالہ سے تو ابھی پچھلے مہینے ہی ملے تھے۔ امی دانت پیس کر رہ جاتی، انہیں اچھی طرح یاد تھا پچھلے مہینے بھی کن جتنوں سے اسے لے کر گئی تھی۔ وہاں بھی جا کر خالو کی لائبریری میں گھس گئی، تبھی باہر نکلی جب امی نے واپسی کے لیے پر تول لے۔ اپنے اندر تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کرو اینا بیٹی، لڑکیوں میں اتنا۔ کبھی وہ اینا کو نصیحت کرنا چاہتی تو پہلے جملے پر ہی چونک جاتی، ٹھہراؤ۔ ٹھہرے پانیوں سے بدبو اٹھنے لگتی ہے، کائی جمنے لگتی ہے، زندگی ابرے رواں کا نام ہے۔ یہ کس احمق نے کہا تھا؟ راحت جبیں کے افسانے میں پڑھا تھا۔ بھاڑ میں گئی تمہاری راحت جبیں، دنیا جہان کی باتیں پڑھنا بھی ہیں اور عمل بھی کرنا ہے۔ ماں کیا کہتی ہے کبھی اس پہ غور نہ کرنا۔ چلیں جی، ساری بحث ہی سمٹ گئی۔ امی بڑبڑاتی رہ جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی۔ سعد البتہ ان کا بہت پیارا اور بیبا بیٹا تھا، ان کی ہر بات سنتا، باہر کے ہر کام کے لیے اسے ہی دوڑایا جاتا اور وہ سارے حکم بجا لاتا تھا۔ بات سنو، تم لوگ فوراً میرے کمرے میں آؤ۔ اینا کے اس حکم پر نہ تو سعد کی نظریں ٹی وی اسکرین سے ہٹی، نہ نور کی کتاب سے۔ کچھ لمحے انہیں گھورتی رہی، جل بھن کر آگے بڑھی اور کتاب اور سعد کے ہاتھ سے ریموٹ فوراً ہی چھپٹا تھا۔ دونوں ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ کیا ہوا؟ زلزلہ آ گیا؟ یہ چھت ہمارے سر پر گرنے والی ہے، یہ زمین پھٹنے والی ہے۔
तुम दोनों मेरे कमरे में आओ। हुक्म दोबारा सादिर। क्यों? तुम्हारे कमरे में उसामा बिन लादेन आज छुपाए तेल का कुआं दरियाफ्त हो गया। वो इन्हें चंद लम्हे घूरती रही, झटके से मुड़ी और कमरे से बाहर निकल गई। आओ इसका नया शाकार देखें। साद ने कहा तो नूर ने भी इसकी तकलीद की। छोटा सा स्टोर रूम अब ऐना का स्टूडियो बन चुका था। रंगों के डब्बे, कैनवस, ब्रश, ये सब लाने के लिए अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर चुकी थी। पिछले कई दिनों से वो यहाँ आकर बंद हो जाती, रंगों से खेलते खुद को पाकिस्तान के आला पाई की मुसव्वरा तस्वर करती। लाओ भाई दिखाओ अपना शाकार जिसकी वजह से तुम बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर होने वाली हो। खामोशी से ब्रश साफ करती रही। दिखाओ ना यार, तुमने तो अभी से नखरे शुरू कर दिए। तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो के प्लीज़। दोनों ही मलते जैसी शक्ल बनाकर खड़े थे। अब इतनी मिन्नतें करते हो तो? इसने ड्रामाई अंदाज में कहते अपने शाकार की पर्दा कुशाई की। दोनों साकित तो सामत खड़े रह गए। कैसा? ऐना ने फखरी अंदाज में इन्हें देखा। दोनों गुमसुम थे। क्या हुआ? ऐना ने ज़रा सा झुक कर बगौर अपने शाकार को देखा। कहीं गलत तस्वीर तो नहीं दिखा दी? एक्सीलेंट, साथ के मुंह से बेख्तियार निकला। साथ ही उसकी कोनी नूर के पसलियों को छू गई। बुत की तरह साकित नूर बुरी तरह लड़खड़ाकर होश में आई। हाँ हाँ वाकई तुमने तो कमाल कर दिया है ना। मैं तो सोच भी नहीं सकता था ऐना डियर कि तुम्हारे अंदर इस आला पाए का फनकार छुपा है। तुम वाकई मशहूर हो जाओगी मेरी बहन। लोग इंटरव्यू के लिए वक्त मांगेंगे, टीवी वाले तुम्हारे आगे पीछे होंगे, पैसा, नाम, शोहरत तुम्हारे पास क्या नहीं होगा। अच्छा? ऐना की आंखें फैलती चली गईं। एक बार झुक कर दोबारा तस्वीर को देखा। आलमी मीडिया इस अजीम मुसव्विरा को ढूंढते हमारे घर तक आएगा। BBC पर तुम्हारी कवरेज होगा। तुमने वो काम कर दिखाया है जो मोनालिसा का खालिक भी ना दिखा सका। वाकई इसका चेहरा वफोर जोश से चमकने लगा। मुल्क की सतह तक तो इसने सोचा था, बैनुल अक़वामी सतह पर काम के हवाले से लोग तुम्हें क्लाउड मोटे अहम पल्ला करार देंगे। साथ कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गया था। पता नहीं, शायद नाम कुछ गलत बोल गया हूँ मैं। क्लाउड? ऐना गड़बड़ाई। मुसव्वरी के हवाले से इसकी मालूमात इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। नूर मुँह खोले कभी साथ को देख रही थी, कभी तस्वीर को। ऐना पर भी निगाह डाल लेती। ये साथ क्या बक रहा है? नूर खासी परेशान हो गई थी। ऐना वो अजीम मुसव्वरा की तरफ पलटी। आखिर इस तस्वीर में तुमने बनाया क्या है? बहुत सोच विचार के बाद इसने सवाल उठाया था। तुम तो हो ही बदज़ौक़। तुम क्या जानो फ़न किस चिड़िया का नाम है? साथ मेरे भाई तुम बताओ ज़रा, इस कोड मक्स को एक्सप्लेन करो। क्या फ़नकार अपने फ़न पारे का तारुफ करवाता कि अच्छा लगता है? इसमें साद ने बगौर जायज़ा लिया, सीधा होकर नूर की तरफ पलटा। इसमें ऐना ने दरअसल आलू का खेत दिखाने की कोशिश की है, बल्कि इंतहाई कामयाब कोशिश की है। यानी कि हर आलू अलग अलग नज़र आ रहा है। दानिशमंदाना अंदाज में समझाते हुए ऐना की तरफ देखने की हरगिज़ गलती नहीं की थी। आलू? नूर ने ऐना को आगे पीछे खिसका कर उसे ढूंढने की कोशिश की। मुझे तो कहीं से कोई आलू दिखाई नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है क्रिकेट बॉल है, शायद किसी फैक्ट्री की तैयारी का मंजर। यूनिक आइडिया है। इसने डरते डरते ऐना पर नज़र डाली जिसका रंग तेज़ी से बदल रहा था। तुम अपनी ऐनक बदलवाओ, तुम्हें सही नज़र नहीं आ रहा। आलू है अंधी? शट अप! ऐना हलक के बल चिल्लाई। दोनों एकदम खामोश होकर इसे देखने लगे। जब ऐना को ज़ारो कतार रोते देखा तो तेज़ी से इसकी तरफ लपके। अरे हम तो मजाक कर रहे थे ऐना डियर। स्वीट सिस्टर ने जो कुछ भी हाथ लगा इन्हें ताक ताक कर रसीद किया था। यार ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। तरबूज का आखिरी बाइट लेकर ऐना ने कहा। वाकई नूर ने खाली थाल को गौर से देखते हुए ठंडी सांस खींची और कांटा थाल में रख दिया। ज़िंदगी में कुछ तो होना चाहिए। अपने पेंटिंग के शौक़ के दर्दनाक अंजाम के बाद इसने बहुत दिनों तक कोई मशगला नहीं अपनाया था। अम्मी खासी खुश थी। चलो अकल आई। साद अक्सर राजदारी से पूछता, सिस्टर तुमने इस पेंटिंग में आखिर क्या बनाने की कोशिश की थी? चुपके से बता दो। तुम्हारा सर? चिढ़कर कहती, लेकिन मेरा तो सिर्फ एक ही सर है और वहाँ तो इसके बाद जाहिर है आगे आगे था और रहना पीछे पीछे। थोड़ा थ्रिल, थोड़ा एडवेंचर, कुछ तो ऐसा हो ज़िंदगी में हलचल सी मच जाए। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? नूर ने मशवरा दिया। हो, शादी के बाद इंसान कुछ और करने के काबिल रहता है। जो कुछ करना है इससे पहले पहले करना है। नूर, ऐना नीचे से अम्मी मुसलसल आवाज़ें दे रही थी। चलो नीचे चलकर सोचते हैं। वो नीचे रिमशा पे टिपिंग नाजुक से कढ़ाई वाले रेडीमेड सूट में मलबूस बड़ी नज़ाकत से कांटे में तरबूज का टुकड़ा फंसाए अम्मी के साथ महवी गुफ्तगू थी। जूतों से लेकर ज्वेलरी तक की मैचिंग सब गजब की थी। हल्के घुंघरियाले बाल ऊंची सी पौनी की शक्ल में बंधे थे।
تایا کی 3 ہی بیٹیاں تھیں، رمشا جو کہ مقامی کالج میں انگلش کی لیکچرار تھیں، روشنا ایم اے انگلش کر رہی تھی، رائمہ FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ بھائی کوئی تھا نہیں، باپ نے بیٹوں کی طرح پرورش کی، سو خاصی بولڈ، شوخ اور ہنس مکھ لڑکیاں تھیں، اپنی زندگی خود بنانے اور اپنے فیصلے خود کرنے والی۔ رمشا نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، خوشحال خوش باش زندگی گزار رہی تھی، کم از کم اینا کے نزدیک تو ان کی زندگی قابل رشک ہی تھی۔ رمشا آپی آپ کب آئیں؟ بھائی ابھی آئی ہوں، آپ لوگوں سے ملنے کو دل چاہ، چھٹی بھی تھی۔ نازک سے سرخ لبوں کی تراش میں سفید موتی جھلملانے لگے تھے۔ اکیلی آئی ہیں؟ نور نے حیرت سے سوال کیا۔ تو ساتھ کسے لانا تھا؟ اپنی گاڑی پر آئی ہوں۔ اینا کو رشک آ رہا تھا، کیا آزاد خود مختار زندگی تھی۔ پھر بھی بیٹا، ایک شہر سے دوسرے شہر تک کا تنہا سفر جو بھی ہو اتنی بے احتیاطی ٹھیک نہیں ہوتی۔ آج کے دور میں سب چلتا ہے آنٹی، لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ خیر اب بھائی صاحب کو لڑکیوں کو اتنی بھی آزادی نہیں دینی چاہیے، امی کو برا لگا تھا۔ امی آپ بھی نہ جانے کن زمانوں کی باتیں لے کر بیٹھ جاتی ہیں آج کے دور میں۔ ارے بس کرو تم، سب جانتی ہوں میں، اٹھو، اٹھ کے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ امی جانتی تھی اینا شروع ہو گئی تو خاصا وقت لگے گا، سو فوراً ہی ٹوک دیا۔ اٹھ گئی میری رانی بیٹی، بلکہ مہارانی بیٹی۔ کچن میں آئی تو قیمہ والا پراٹھا بیلتے ہوئے امی نے طنزیہ استقبال کیا تھا۔ تو اب اس مہارانی بیٹی کو ناشتہ بھی چاہیے امی حضور، اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھا تم نے رمشا، یہ اتنی ڈھیٹ ہے، اسی لیے تو کہتی ہوں اسے میرے ساتھ بھیج دیں، ماحول بدلے گا تو اس کے مزاج پر اچھا اثر پڑے گا۔ رمشا نے سلائس پر مارجرین لگاتے ہوئے کہا، ہاں امی میں کچھ دنوں کے لیے تایا کے ہاں نہ چلی جاؤں؟ کچھ دنوں نہیں، میں ذرا تمہیں مستقل لے جانا چاہتی ہوں۔ مستقل؟ جیم کا ڈھکن کھولتے وہ رک گئی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تایا کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں۔ قصدن پریشان صورت بنائے پوچھ رہی تھی، زبان کو لگام دے آنا۔ امی کی تنبیہی آواز پر اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ میرا کافی عرصے سے ارادہ تھا ایک پرائیویٹ اسکول کھولنے کا، لیکن ظاہر ہے میں تو جاب کرتی ہوں، مجھے کسی قابل بھروسہ ساتھی کی ضرورت ہے۔ اب اگر تم ساتھ دو تو ہم یہ کام چند ہفتوں میں ہی شروع کر دیں گے، مستقل، اس طرح کہ وہیں کہیں تمہاری شادی بھی کروا دیں گے۔ شادی تو خیر میں نے کرنی ہی نہیں، البتہ اسکول کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اور ابو کو کون منائے گا؟ ابو کو منانا میرا کام، آپ کو منانا ابو کا۔ میں بھی اب سنجیدگی سے اس پر غور کر رہی ہوں۔ وہ اپنے فیصلے یوں ہی کیا کرتی تھی، اچانک اور اٹل۔ ننھے منھے بچے، شور شرابہ، تھرل، لیکن رمشا آپی مجھے تو کوئی تجربہ ہی نہیں۔ بھائی میں ہوں نا تمہارے ساتھ، پرنسپل بنا کر چھوڑوں گی تمہیں۔ پرنسپل؟ زبردست۔ اچھا اگر پکا ارادہ بنے تو مجھے بتا دینا۔ جانے سے پہلے رمشا نے کہا تھا، اور وہ تو ایک طرف وہ پوری کی پوری تیار ہو گئی تھی۔ ابو کو منانا کوئی مسئلہ ہی نہ تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ نے لڑکیوں کو اتنا سر پر کیوں چڑھا رکھا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے ابو کو ہی لپیٹا، ہر پل ان کے لاڈ اٹھاتے ہیں۔ انہیں اگلے گھر بھی جانا ہے، اگلے پچھلے ہمیں کسی گھر نہیں جانا۔ وہ منمنائی تھی۔ اینا بیٹا تم اب جاؤ۔ اینا خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آپ کچھ خیال کریں، بچیاں جوان ہو چکی ہیں، انہیں کوئی طریقہ سلیقہ بھی سیکھنے دیں۔ گھر گھرستی بھی کوئی چیز ہے احمد صاحب، کسی غیر کے گھر نہیں جا رہی۔ بس بیٹی نے کوئی فرمائش کی نہیں اور یہ ہو گئے تیار۔ آپ جانے اور آپ کے بچے، میں کون ہوتی ہوں 3 میں نہ 13 میں۔ کمال ہے اپنی بچیوں کا مزاج بھی نہ سمجھ سکی تم۔ کون سا ایسا کام ہے جو تم نے انہیں نہیں سکھایا؟ ہر کام تو کر لیتی ہیں۔ باقی رہی لاپرواہی، لاؤبالی پن، تو یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے۔ اینا کو جانے دو، وہاں 4 دن نہیں رکے گی۔ چند دنوں میں اکتا کر نہ بھاگی تو مجھے کہنا۔ 4 دن کا شوق ہے پورا کر لینے دو۔ اسی نقطے پر آ کر امی سے بھیجنے پر آمادہ ہوئی تھی۔ سیاہ کولتار کی جلتی بلتی سڑکیں، قدرے دور دور بنے بہت خاموش گھر، یوں لگتا ہے ان بند دروازوں کے اس طرف صرف خاموشی ہے، محب خاموشی۔ سنسان، خاموش اور ویران سا علاقہ تھا جہاں رمشا آپی کا اسکول تھا۔ اسکول چھوٹا، خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اینا کو بہت پسند آیا۔ سلام میڈم جی۔ نیتا بی بی قدرے بھاری وجود، بڑے ٹھسے کی عورت تھی، صاف ستھرا لباس، بات کم، کام پر دھیان زیادہ دیتی تھی۔ میں نے صبح سے کئی بار صفائی کی تھی کہ آج باجی نے آنا ہے۔ رمشا نے پورے اسکول کا جائزہ لیا، 1-2 نقص نکالے، چند ایک ہدایات دی۔ اینا کو اس کا کام سمجھایا۔ چند بچے آ جائیں تو ٹیچرز رکھیں گے، کل نہیں پرسوں میلاد رکھ لیتے ہیں، اس ایریا کی تمام خواتین کو بلائیں گے۔ انہوں نے دراز کھول کر کارڈز نکالے، میلاد کے دعوت نامے تھے۔ بچے آئیں گے نا؟ اینا فوراً اسکول کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ انشاءاللہ ضرور آئیں گے، لوگ خاصے متجسس ہیں اسکول کے بارے میں، کیونکہ اس علاقے میں کوئی اور اسکول تو ہے ہی نہیں۔
वो पूरब में थी। दोपहर तक वो दावतनामे लिखती रही। एक दो खवातीन गेट खुला देकर मिलने चली आईं। अच्छी गहमा गहमी रही। शाम को चाय पीते इसी जोश में रोशना और राइमा को तफसील सुना रही थी। यार क्या बोरिंग सा काम शुरू कर दिया तुमने। मैंने सोचा था तुम आओगी, थोड़ा एंजॉय करेंगे। तुम तो रोशना खासी मायूस हुई थी। बोरिंग नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हर रोज़ इतने लोगों से मिलना, ऐसी ऐसी खवातीन आती हैं कि क्या बताऊं। और अभी एडमिशन तो हुआ नहीं, होगा ज़रूर। नया स्कूल है ना, इसलिए थोड़ा बहुत लोग घबराते हैं। स्कूल चल निकला था। रिमशा मुतमईन थी और ऐना खुश। घर वाले जो ही समझे बैठे थे चंद दिनों में उकताकर भाग निकलेगी। अब इसके मुस्तकिल मिजाजी पर हैरान थे। छुट्टी होने में चंद ही मिनट बाकी थे। वो अपनी चीज़ें समेट रही थी जब बाहर शोर मच गया। बच्चों की चीखों पुकार सुनकर इसके हाथ से रजिस्टर छूट गया। तेज़ी से कुर्सी खिसकाकर वो खड़ी हुई। बाहर निकलकर देखा, सांप मैडम, सांप। सारे बच्चे क्लासों से बाहर थे। नीता बीबी हाथ में डंडा पकड़े थर थर काँप रही थी और मैडम सांप का लफ्ज़ सुनते वापस भागने को तैयार थी। बच्चों को देखकर रुक गई जो इस वक्त मुकम्मल इसकी जिम्मेदारी थे। चौकीदार अभी आधा घंटा पहले इसे छुट्टी लेकर गया था। इसे अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। दोनों टीचर्स हवास बागता खड़ी थी। कहाँ है सांप? यहाँ वहाँ, इधर से आया उधर गया। इसने देखा इसने देखा। भांत भांत की आवाज़ें, शोर हंगामा। चुप करो। सारी आवाज़ें सरगोशियों में ढल गईं। बच्चे खौफजदा कम पुरजोश ज़्यादा थे। मैडम वो दीवार से उड़ कर आया था, मैंने खुद देखा था। एहसन ने ज़रा आगे निकल कर बताया। सांप था या कौवा जोड़ कर आया था? ऐना ने लताड़ा। फिर नीता को पुकारा। किधर से आई है? तो मैंने नहीं देखा, पर वो दीवार के सुराख में है। इतना बड़ा है। आरिफ ने बाजू फैलाया। ऐना के चारों तरफ सरसराटे से होने लगी। इतना मोटा डंडा है तुम्हारे हाथ में, एक सांप नहीं मार सकी तुम? यकदम उछल पड़ी है। दाहिने पाँव की एड़ी पर कुछ रेंगा था। क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? मैडम अपने लंबे दुपट्टे के पल्लू को कोस रही थी। मैडम जी आप खुद मार लें। नीता बीबी ने आराम से डंडा इसकी सेन बढ़ा दिया। शट अप, छुट्टी का टाइम हो गया, बेल दे दो। फिर छोटे बच्चों को अपनी निगरानी में स्कूल से बाहर निकाला था कि बड़ी क्लासों के बच्चे भी सांप को देखना चाहते थे। दो बच्चियां थी जिन्हें नीता बीबी खुद इनके घरों तक छोड़ने जाती थी। ऐना ऑफिस में आकर दोनों पांव कुर्सी पर रखकर बैठ गई। रिमशा इसे पिक करती थी और अब वो आने वाली थी। नीता बीबी वापस आई तो मिस तहमीना, मिस जुबारिया भी चली गईं। ऐना को बाहर सूरज सांप मरवा कर ही जाना था। ये ना हो कल किसी क्लासरूम में घुस जाए खामखा का रिस्क। रिमशा आप ही क्यों नहीं आ रही? इसने बेताबी से घड़ी पर निगाह दौड़ाई। तभी याद आया आज कॉलेज में पार्टी थी। रिमशा ने कहा था इन्हें देर हो जाएगी इसलिए वो घर चली जाए। ओफो, पार्टी भी आज ही होना थी। चौकीदार के बच्चे को भी आज ही बीमार होना था। सांप कमबख्त को भी आज ही निकलना था। नीता स्टोल पर डंडा हाथ में लिए सुराख पर नजरें जमाई बैठी थी। मैडम आपसे कोई मिलना चाहता है। परेशान सी बैठी थी जब नीता ने आकर बताया। हाँ भेजो। वो बेख्याली से गोया है। मुझे मोहम्मद रईस सद्धू कहते हैं। सद्धू? इसने इसी बेख्याली में सर उठाकर सफ़ेद काटन के कलफ लगे कपड़ों में मलबूस 6 फीट से निकलते कद वाले शख्स को देखा। तेजी से पाँव नीचे उतारे। ज़ात है हमारी। होगी, फरमाइए। वो संभल चुकी थी। स्कूल देखने आया था, बच्चे का एडमिशन करवाना। इसने 2 मुख्तसर जुमलों में मुद्दा बयान किया। सद्दू साहब, ऐना के जहन में अचानक ख्याल आया था। रईस कहते हैं मुझे। जी कहते होंगे। आप सांप मार सकते हैं? सांप? सामने वाले ने तहय्युर से इसे देखा। हमारे स्कूल में सांप घुस आया है। कहाँ है? दोनों हाथ पुश्त पर बांधते जरा सी गर्दन मोड़कर फर्श का जायजा लिया। बाहर है, अब मार सकते हैं। रईस ने मुड़कर इसे देखा जो बड़ी उम्मीद से पूछ रही थी। इसने जवाब देने के बजाय किसी को पुकारा था। जाजी। बोतल के जिन की तरह जिस किस्म का जाजी अंदर आया था, इसे देखकर ऐना को झुरझुरी आ गई। इस लहीम शहीम बिल्कुल सियाह रंग बंदे के चेहरे पर 2 बड़े बड़े जख्मों के निशान थे। एक निशान तो इसकी आंख से शुरू होकर होंठों को चीरता हुआ गया था। मुद्दा सुनकर जब इसने चादर उतारकर चादर में छुपी क्लाशनकोफ को दीवार से टिकाया तो ऐना के हाथों के तोते भी उड़ गए थे। इस तरारी अंदाज में खड़ी हो गई। ये क्या है? क्लाशनकोफ है। सामने खड़े बंदे ने बेहद नॉर्मल अंदाज में बताया था। इससे मारेंगे? हलक बिल्कुल खुश्क हो गया था। रईस ने बज़ाहिर सरसरी बगौर इसे देखा। पीली पड़ती रंगत देखकर गोया तरस आ गया था। खराब है, ठीक करवाने लाए हैं। जाजी ने नीता से दरियाफ्त करके कि सांप कहाँ है सुराख में पानी डाला तो तड़प कर बाहर आ गया। जाजी जो हाथ में पत्थर लिए इसका सर कुचलने को तैयार था, कदरे हैरान होकर रईस को देखने लगा। वो खुद हैरान था। यही सांप है?
हाँ जी। नीता ने जोर शोर से सर हिलाया। जाजी ने बगैर मारे चुटकी से इस 5-6 इंच के सांप के बच्चे को पकड़ा और बाहर ले गया। इसे मारा क्यों नहीं? ऐना ने तशवीश से पूछा। बच्चा है, जहरीला नहीं, बेजरर सांप है, खामखा मारने का फ़ायदा। किसी नाले में डाल देगा तो बहता हुआ दूर निकल जाएगा, वापस तो नहीं आएगा। इसने गर्दन घुमाकर पिंक काटन के एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में मलबूस गुलाबी सी लड़की को देखा और बेहद संजीदगी से कहा, आ भी सकता है जी। कदरे खौफजदा सी इसका चेहरा देखने लगी। जब एहसास हुआ इसने बेहद संजीदगी से मजाक किया तो इसकी सभी पेशानी पर शिकन सी उभरी। तभी वो नीता की तरफ घूमी। कमरे अच्छी तरह से चेक करके लॉक करो। खुद वो ऑफिस में आकर अपनी चीज़ें उठाने लगी और साथ ही रईस से फरमाया, फरमाइए। नाम भी बता चुका हूँ और काम भी। ऐना की बेतवज्जही पर इसके लहजे में नागवारी सी दर आई। ऐना को एहसास हुआ सब काम छोड़कर पूरी की पूरी इसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। बैठिए। वो कुर्सी पर यूं बैठा था गोया इस पर एहसान किया और टांग पर टांग चढ़ाकर एक बाजू दूसरी कुर्सी पर फैला लिया था। बच्चा आपका है? मेरे मुलाजिम का। इसने जाजी की तरफ इशारा किया जिसने दोबारा से चादर ओढ़कर क्लाशनकोफ उठा ली थी। ऐना का हरगिज इरादा नहीं था कि वह शक्ल से डाकू नजर आने वाले शख्स के बच्चे को एडमिशन दे। सरासर अपने सर पर मुस्तकिल खौफ मुसल्लत करने वाली बात थी। एडमिशन तो बंद हो गए। रईस ने निगाह उठाकर बतौर इसे देखा था, मेरा मतलब है काफ़ी देर हो गई। स्कूल के रूल्स और ऐना गड़बड़ा सी गई थी। बाजू समेट कर आगे को झुका। अब इसका हाथ मेज पर पड़े पेपर वेट को छू रहा था। देखें, आप कुछ दिन पहले आ जाते तो शायद कुछ हो जाता। वो पेपर वेट घुमा रहा था। एकदम उठकर खड़ा हुआ। कल ये बच्चे को लेकर आएगा, इसे क्लास में बिठा दीजिएगा। इसका लहजा ठोस कतई था। ऐना कुछ बोल ना सकी। क्या बेवकूफ़ लड़की, तुमने इनकार क्यों किया? तुम्हें पता नहीं है ऐसे लोगों का? रोशना चीख उठी थी। लोग भी वो जो क्लाशनकोफ रखते हैं। रायमा ने लुकमा दिया। ख़राब थी। ऐना ने इत्तला दी। ठीक भी हो सकती है। उन्होंने ऐसे ऐसे नक्शे खींचे कि अगले दिन जब जाजी अपने बच्चे के साथ आया तो ऐना ने खामोशी के साथ एडमिशन फॉर्म आगे रख दिया था। इसने फॉर्म को उलट पुलट कर देखा। इसके सामने रखते हुए बोला था, बाजी जी तो आप ही पोर कर दियो ना, बड़ी मेहरबानी होएगी। इस काले देव के मुंह से इतनी मौतबाना फरियाद सुनकर वो हक्का बक्का रह गई थी। वो घर आई तो ताई के पास एक गोरी से बुजुर्ग खातून बैठी थी। रमशा सलाम करके अपने कमरे में घुस गई। ताई ने इसे अपने पास बिठा लिया था। खातून ने खासी दिलचस्पी प्यार से इसे देखा। ऐना को भी वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा था। मैं आपसे पहले भी कहीं मिली हूँ। खातून मुस्कुरा दी। तुम्हारे स्कूल में मिलाद हुआ था, तब मुलाकात हुई थी। अच्छा, आप वहीं रहती हैं? इसी ब्लॉक में? हमारे यहाँ कोई छोटा बच्चा तो है नहीं। दावतनामा मिला तो आ गई। तभी ताया जान आ गए। ताई जान उठने लगी। ऐना ने इन्हें बिठा दिया। बैठे, खाना मैं निकाल देती हूँ। वीकेंड था और इसे घर जाना था। शुरू में साद इसे लेने और छोड़ने आता रहा, लेकिन 1-2 बार के बाद इसकी झिझक ख़त्म हो गया। वो खुद ही आ जाती थी। कभी कभी रमशा का मूड होता, वक्त भी, तो वो भी साथ हो लेती। यूँ एक भरपूर वीकेंड के बाद वो वापस चली आती थी। जहाँ इसके घर वाले इसके बगैर उदास होते, वहीं ऐना को यह एहसास भी होता कि वो ज़िंदगी गुजार रही है, ज़िंदगी इसे नहीं गुजार रही। अगरचे उदास तो वो भी हो जाती थी। वो पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज इमली की चटनी के साथ लेकर बरामदे में ही चली आई। अम्मी बस अब आ जाएं, इसने पुकारा, मगर इसी वक्त फ़ोन बजने लगा था। अम्मी फ़ोन की तरफ बढ़ गई। वापस आई तो चेहरा खिल रहा था। तुम्हारी ताई का फ़ोन था। खैरियत तो थी? ऐना ने पूछा। तुम वापस कब जा रही हो? कल। तुम्हारे साथ हम भी जाएंगे। क्यों? नूर ने किताब से नजरें हटाई। ऐना को तो अम्मी पुरस्कार अंदाज में मुस्कुरा रही थी। कम अज कम ऐना को तो इनकी मुस्कुराहट पुरस्कार ही लग रही थी। भाई लड़का देखने। क्यों अम्मी, आपने पहले कभी लड़का नहीं देखा? ऐना ने खासा बेतुका सवाल किया था। तुम्हारे लिए? मेरे लिए? मगर क्या? बात समझने के बाद चिल्ला उठी थी। किसी खातून ने तुम्हें स्कूल में देखा और पसंद कर लिया। वो तुम्हारी ताई के पास आई थी प्रपोजल लेकर। लड़की इन्हें पसंद है। अब उन्होंने हमें दावत दी कि हम आकर लड़का देख लें। तुम्हारे ताया जान खुश हैं। बहुत अच्छा प्रपोजल है। ताया ताई खुश हैं तो खुद कर लें। ऐना एकदम भड़क उठी। ये क्या बकवास है? अपनी बेटियों पर बस ना चला तो मेरे पीछे पड़ गए। इतना ही अच्छा है तो रमशा की कर दें। अच्छी खासी बदलिहाजी से बोल ली थी। चुप कर जाए ना, हद होती है बदतमीजी की। अम्मी कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी। अम्मी, जब मैंने कहा है कि मैं शादी नहीं करूँगी तो ये लड़का। अब के इसका लहजा एहतजाजी हो गया था। मैंने कहा ज़्यादा ज़ुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतनी आज़ादी नहीं दी हमने तुम्हें।
کہ ایسے فیصلے خود کرو، ہم زندہ ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ امی نے اس کے بولنے کی گنجائش ہی کہاں چھوڑی تھی، وہ سب کو چھوڑ چھاڑ اندر جا گھسی۔ نور پکوڑا ہاتھ میں لیے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ امی کی طرف متوجہ ہو کر اشتیاق سے پوچھنے لگی، امی کون لوگ ہیں؟ اینا کا خیال تھا اس کا احتجاج کچھ تو رنگ لائے گا، مگر کہاں، امی اور ابو دونوں خوشی خوشی چلے گئے۔ وہ دعائیں ہی مانگتی رہے گی کاش وہ بندہ انہیں پسند ہی نہ آئے، مگر وہ جتنے خوش خوش گئے تھے اس سے زیادہ خوش ہو کر واپس آئے۔ سعد اور نور انہیں گھیر کر بیٹھ گئے، ڈھیٹ بن کر اینا بھی وہیں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ باقاعدہ پروپوزل لائیں گے تو ہم لوگ ہاں کر دیں گے۔ امی کی پوری گفتگو کا لب لباب یہی آخری جملہ تھا جسے سن کر اینا کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ آپ دیکھ لیجئے گا منگنی کی انگوٹھی ہی نہیں پہنوں گی۔ دھمکیاں دیتی چیچا وطنی گئی تھی، ابھی رمشا وغیرہ سے بھی دو دو ہاتھ کرنے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے ہوتے سب ہو کیسے گیا؟ بیل کے پتے نوچ نوچ کر اس نے ڈھیر لگا دیا تھا، جتنی بار وہ بیل کی طرف ہاتھ بڑھاتی رمشا کا منہ اتنی بار ہی کھلتا تھا، مگر اس کے حالت کے پیش نظر لب بھینچ لیتی۔ بھائی میں کیا کر سکتی تھی؟ رمشا نے خاصی حیرت سے اسے دیکھا۔ اپنے لیے لڑ سکتی ہیں اور میری اتنی سی مدد بھی نہیں کر سکتی؟ میں جتنا کر سکتی تھی وہ کہا، اپنے لمبے ناخنوں کو سرخ نیل پالش سے سجا رہی تھی۔ اب تم ہی اپنا مقدمہ ڈھنگ سے نہیں لڑ سکی تو میری فیور کا فائدہ؟ بھائی وہ زمیندار بندہ ہے، کون جانے ذمہ دار کا مینٹل لیول کیا ہے، کل کلا کو گاؤں لے جا کر تمہیں گھر میں بٹھا دے، تم تو گئی کام سے۔ اپنی نیل پالش کا جائزہ لیتے انہوں نے کچھ اور ڈرایا۔ امی ابو نے میرے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، بس جان بوجھ کر بوجھ اتار رہے ہیں۔ میں کیا کوئی ان پڑھ جاہل لڑکی تھی جو اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتی؟ اوفو، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ روشنا جو کب سے صبر کیے بیٹھی تھی جھنجلا گئی۔ کیوں کر رہی ہیں ایسی عجیب و غریب باتیں؟ ایسی کیا انہونی ہو رہی ہے تمہارے ساتھ؟ سب کی شادیاں ہوتی ہیں، تمہاری ہو گئی تو پوچھوں گی۔ اینا چڑھ کر بولی، تمہاری طرح واویلا نہیں کروں گی، آرام سے انگوٹھی پہن کر مزے سے شادی کی تیاریاں کروں گی، اور اسی بات پر رب کا شکر ادا کروں گی کہ مناسب کام مناسب وقت پر ہونے جا رہا ہے۔ اینا کو پہلی بار پتہ چلا روشنا کے خیالات رمشا سے بالکل الٹ ہیں۔ تم تو بس چپ کرو، مجھ سے بنا پوچھے ہاں کر دی۔ میں کوئی بھیڑ بکری تھی؟ نہ کوئی پوچھا نہ بتایا، تصویر تک نہیں دکھائی۔ اسے پھر سے رونا آ گیا، اور اب تک وہ نہ جانے کتنی بار رو چکی تھی۔ سچویشن ہی کچھ عجیب سی تھی۔ وہ یہاں آئی تو اس معاملے میں کچھ دیر کے لیے خاموشی سی چھا گئی تھی۔ تائی جان سے بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی اور وہ سمجھی شاید معاملہ ٹھپ ہو گیا، مگر امی کے فون نے گویا قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ لی۔ وہ لوگ باقاعدہ پروپوزل لے کر گئے تھے اور امی ابو نے ہاں کر دی۔ اتوار کو منگنی کی رسم ہے، تب سے اب تک اینا کا بس نہیں چلتا تھا کس کس سے لڑے۔ لے دے کر سارا غصہ کزنس کے سامنے اترتا تھا۔ یہ تو زیادتی ہے، کم از کم تصویر تو تمہیں دکھانی چاہیے تھی۔ اب کہ روشنا نے بھی اس کا ساتھ دیا، تصویر کا کیا مسئلہ ہے، منگوا لیتے ہیں۔ رمشا نے کہا، اگر مجھے پسند نہیں ہے تو میں انکار کر دوں گی۔ ضرور کرنا، تمہارا حق ہے۔ روشنا سر پکڑ کر رہ گئی۔ جو جو منگنے کا دن نزدیک آ رہا تھا اینا کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا، اور تصویر تھی کیا آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سونے پہ سہاگا، تائی جان نے کہا تھا منگنی کی رسم انہی کے گھر پر ہوگی، جس پر ابو آرام سے راضی ہو گئے۔ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ اینا یہاں وہاں چکراتی پھرتی، تم صرف بیٹھ جاؤ تو کافی ہے۔ روشنا چڑ جاتی۔ تائی دہائی دیتی، بازار ہو آؤ، منگنی کا جوڑا پسند کراؤ۔ انہوں نے مشترکہ رائے سے انگوٹھی اور دیگر لوازمات کے لیے نقد رقم کی بات کی تھی کہ بچی بعد میں اپنی پسند سے شاپنگ کر لے گی، اور بچی ترنت جواب دیتی جنہوں نے منگنی والا پسند کیا ہے وہی جوڑا بھی پسند کر لیں۔ کبھی وہ بے حال ہو کر رمشا سے پوچھتی، رمشا تصویر کیوں نہیں آ رہی؟ گاؤں جا بیٹھے موصوف، آئیں گے تو ہی تصویر بھیجوائیں گے۔ ساری تیاریاں ہو گئیں، اس کا جوڑا سل کر آ گیا۔ دن ایک ایک کر کے گزرتے چلے گئے، وہ مایوس سے مایوس تر، سب سے خفا ہوتی چلی گئی۔ اور تصویر آئی منگنی سے ایک دن پہلے، روشنا لے کر بھاگی چلی آئی، لو دیکھ لو، خدا کے لیے کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ اب بھی کیا ضرورت تھی، سب کچھ تو ہو گیا۔ پلیز میری اچھی بہن، روشنا نے منت کی۔ اینا نے بد دلی سے تصویر تھام کر نگاہ دوڑائی۔ ایک پل کو اس کی نگاہیں ساکت تاثرات جامد سے ہو گئے۔ میرا نام محمد رئیس ہے، واپس تو نہیں آئے گا؟ آ بھی سکتا ہے، کل یہ بچے کو لے کر آئے گا، اسے کلاس میں بٹھا دیجیے گا۔ کیسا دھمکی دیتا لہجہ تھا۔ تصویر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر بیڈ پر جا پڑی اور وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر روئی تو روتی ہی چلی گئی۔ جتنی جلدی اس کے سسرال والوں کو تھی شادی کی، اس سے زیادہ جلدی امی کو تھی۔
जोर और शोर से शादी की तैयारियों में मसरूफ थी। मजबूरन नूर को किताबें छोड़कर इनके साथ बाजारों के चक्कर लगाने पड़े। ऐना ने कसम खा रखी थी किसी काम को हाथ ना लगाएगी। अम्मी अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर किसी बात में मशवरा कर भी लेती तो सादतमंदी से कहती थी जैसे आपकी मर्जी। और इस सादतमंदी के पीछे जो तंज छुपा हुआ था इसे समझकर अम्मी बिलबिला कर रह जाती। मैं कोई दुश्मनी तो नहीं कर रही, ये औलाद है मेरी, सोच समझ कर ही फैसला किया। अपने बाप के सामने नखरे दिखाए, ऐसी औलाद को तो 100 जूते लगने चाहिए। वो ऐना के पीछे चुपके चुपके बुड़बुड़ाती कि चंद दिन बाद पराई हो जाने वाली बेटी का दिल मजीद खराब नहीं करना चाहती थी। साथ कभी कभी हैरत से पूछता है ना आप ही आखिर इस रिश्ते में बुराई क्या है? भले एक भी ना हो, बस मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। इसका लहजा दो टोक होता। तो अंगूठी क्यों पहननी थी? मजीद हैरान होता। और अंगूठी इसने अपनी मर्जी से कहाँ पहननी थी? वो तो मजबूरन पहननी पड़ी थी। जब ताया ने आकर पूछा, ऐना बेटी मैंने सुना है तुम कुछ परेशान हो, तो ऐना की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। ताया ने पास आकर शफकत से सर पर हाथ रखा। रो क्यों रही हो बेटी हो मेरी? बुरा तो नहीं सोचूंगा तुम्हारे लिए, आखिर हम इतने सारे लोग गए थे, मिले थे इससे, कुछ अच्छाई देखी है तभी तुम्हारे लिए पसंद किया। लेकिन अगर तुम समझती हो कि तुम एक की सोच हम सब की सोच से बेहतर है और तुम हमसे बेहतर फैसला कर सकती हो तो ठीक है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, हम इनकार कर देते हैं। कैसे चुन चुन कर फिक्रे इस्तेमाल किए थे ताया ने कि वो चूं भी ना कर सकी, और खामोशी से अंगूठी पहन ली और घर वालों के साथ ही वापस आ गई। रमशा चीखती रह गई, मेरे स्कूल का क्या होगा? मगर ऐना की जाने भला, एक मशरी की बेटी की तरह इसने माँ बाप की लाज रख ली थी। शादी के दिन जो जो करीब आ रहे थे इसके हिजान और इस्तराब में इजाफा ही हो रहा था। न जाने कौन कौन से खदशे और वाहिमे थे जो इसे सताते थे। दुल्हन का इस्तकबाल बेहद अरमानों, चाहतों और जोशो जज्बे के साथ हुआ था। इसकी अकलौती नंद अनीसा, जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी, के पांव जमीन पर न टिक रहे थे। दरवाजे पर रोकर न जाने कौन कौन सी रस्में अदा की। मेरा दिल घबरा रहा है। ऐना के साथ रमशा और छोटी फुप्पो आई थी। इसने रमशा का हाथ थाम कर बमुश्किल ही जुमला बोला। फौरन ये अफरा तफरी फैल गई। इसे संभाल कर सोफे पर बिठा दिया गया। जल्दी से ठंडा पानी लाओ, कोल्ड ड्रिंक लाओ, इसकी सास ने किसी को दौड़ाया था। कोल्ड ड्रिंक पीकर इसे कुछ सुकून का एहसास हुआ। तबीयत ज़्यादा तो नहीं घबरा रही? इसकी सास ने बेहद शफकत से पूछा। ऐना ने नफ़ी में सर हिला दिया। गहरे सुर्ख राजस्थानी लहंगे में मैचिंग जेवर पहनने, अनोखा सा रूप लिए सबके दिल में समा रही थी। सास ने न जाने कितनी बार इसकी नज़र उतारी थी। फिर सलामियों का सिलसिला शुरू हो गया। अगरचे मेहमान बहुत ज़्यादा नहीं थे। रईस को बुलाओ, फ़ोटो सेशन हो जाए। और रईस साहब बड़े तमतराक के साथ फैल करके इसके पास विराजमान हो गए। वो बस पहलू बदल कर रह गई। फोटोग्राफर क्या हदायत दे रहा था कुछ भी सुन ना पाई थी। बस नजरें झुकाए बैठी रही। बस करो, दुल्हन को इसके कमरे में पहुंचा दो, कुछ देर आराम कर ले, इसकी सास ने कहा। फौरन चंद रिश्तेदार खवातीन इसे अजलाए रूसी में ले गई। रमशा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया था। तुम ज़रा रिलैक्स हो जाओ। ऐना ने सर उठाकर कमरे का जायज़ा लिया। ताज़ा गुलाब, मोतिये की कलियों से सजी मसहरी, जबकि दरो दीवार भी ताज़ा गुलाबों से सजे थे। पूरा कमरा महक रहा था। बहुत अच्छे अंदाज में सजावट की गई थी। बाज़ौक लोग हैं। रमशा ने बेख्तियार सराहा। रमशा आप ही मेरी शादी हो गई? इसे अब भी एतबार नहीं आ रहा था। तमाम तर एहतजाज के बावजूद ये शादी हो गई। बेफिक्र हो, अभी आएंगे मौसूफ तो यकीन भी दिला देंगे। वो मज़े से बोली। चौंक गई। तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बस मेरा दिल घबरा रहा है। इतना टेंस क्यों हो रही हो? इजी फील करो। रमशा ने इसका हाथ थपथपाया। टिश्यू पेपर लेकर इसका पसीना खुश्क करने लगी। ये भी गनीमत है कि ज़्यादा मेहमान नहीं है। तुम्हें रिवायती दुल्हनों की तरह कि 1 घंटे बैठना नहीं पड़ा। मगर तुम इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? पता नहीं, एकदम हाथ पैर छोड़कर लेट गई थी। तभी रमशा ने घबरा कर दरवाज़ा खोलकर बाहर किसी को आवाज़ दी। इसकी सास और नंद तेज़ी से अंदर आई। ऐना की तबीयत ठीक नहीं है, खुदा खैर करे, इसकी सास ने दहल कर कहा। डॉक्टर का आने में ज़्यादा वक्त ना लगा था। कमज़ोरी, लो ब्लड प्रेशर, कम ख्वाबी से सिर्फ आराम की ज़रूरत थी। रईस डॉक्टर के पास ही खड़ा था। ऐना ने अपना बाजू आंखों पर रख लिया। डॉक्टर ने इसे सुकून आवर इंजेक्शन दिया था। थोड़ी देर बाद इस पे गनूदगी तारी होने लगी थी। कैसी तबीयत है बेटी? इसकी सास का पुरशफकत लम्स इसके माथे पर जागा। ठीक उठ कर बैठ गई। कमरे में गुलाबों की बासी खुशबू थी। कल के ताज़ा गुलाब अब मुरझाए हुए थे। रात का खतरा टल गया था और वो खासी मुतमईन थी और कदरे पुरसकून भी।
एक भरपूर नींद ने उसके असाब पुरसकून कर दिए थे। रात रमशा इसके साथ ही सोई थी। छोटी फुप्पो दूसरे कमरे में थी, रमशा शायद बाथरूम में थी। नजर लग गई, कल लग भी तो इतनी प्यारी रही थी। माँ जी ने प्यार से इसकी पेशानी चूमी, मुलाजमा को आवाज दी। एक साथ कई मुलाजमाएं अंदर आईं, जिनके हाथों में पकड़े थालों में न जाने क्या क्या था। वो जो ऐना पर वार वार कर इन्हें दोबारा पकड़ा दिया गया। तुम तैयार हो जाओ, फिर मैं नाश्ता लगवाती हूँ, प्यार से कहते हुए चली गई। इसकी नींद ने आकर फिरोजी, इसे नींद बहुत अच्छी आई थी। उसकी नंद ने आकर उसके पेशवाज और जेवर निकाल दिया था। मेकअप तो रमशा को ही करना था। वलीमा तो शाम को है, यह भी से इतना भारी ड्रेस और जेवर। रमशा बाहर आई तो ऐना ने कहा था। जवाबन रमशा ने इसे घूर कर देखा और याद दिलाया, एक दिन की दुल्हन हो तुम, वैसे रात को तुमने हद ही कर दी। कोई तो थी तबीयत खराब करने की। लोग क्या क्या नहीं सोचते सुहाग रात के बारे में, और तुम इन सुर्ख गुलाबों की लाज रख ली होती। उन्होंने खासे तासुफ से मुरझाए हुए गुलाबों की लड़ियों को देखा। ऐना लापरवाही से पांव हिलाती जेवर के डिजाइन पर गौर करती रही। थोड़ी देर बाद छोटी फुप्पो भी आ गई। तशवीश से खैरियत दरियाफ्त करती रही। रमशा के हाथ बेहद महारत से इसके चेहरे के नकोश संवारने लगे। वो इसे जेवर पहना रही थी। जब अनीसा ने कमरे में झांका, वाह भाभी, आप तो कल से भी ज्यादा प्यारी लग रही हैं। वो इसके करीब आकर बेख्तियार गोया हुई, और तुम इस ड्रेस में बिल्कुल गुड़िया सी लग रही हो। तो वो खिलखिला उठी, और रईस भाई कहते हैं मैं ये ड्रेस पहनकर बिल्कुल पिंक पैंथर लग रही हूँ। इसने मज़े से बताया तो ऐना सोचने लगी, अगर ऐसी तारीफ साद इसकी करता तो इसके साथ क्या सलूक करती। माँ जी पूछ रही हैं, अगर आप तैयार हो गई हो तो नाश्ता लगवा दें। रईस भाई तो बहुत जल्दी नाश्ता कर लेते हैं। ऐना ने चौंक कर इसकी शक्ल देखी। रिमशा ने ओके का सिग्नल देते हुए दुपट्टा सेट करना शुरू कर दिया। आनंद फानंद कमरे में टेबल सेट हो गई, जिस पर अनवा अक़साम की चीज़ें लवाजमात सज गए। वो हवास बाख्ता हो गई। रिमशा अपी, मैं मुझे नाश्ता नहीं करना। क्या मुसीबत है तुम्हें, दांत पीस कर रह गई। या तो शादी नहीं करना थी, कर ली तो भुगतो। आप ही प्लीज़, वो रूहान सी हो गई, वो तुम्हें खा नहीं जाएगा। आप हमारे साथ नाश्ता कर लें। ऐना ने गोया मिन्नत की। मैं और फुप्पो दूसरे कमरे में करने जा रहे हैं। उन्होंने बेमुरव्वती से कहकर मेकअप की चीज़ें समेटना शुरू की। ऐना बैठी उंगलियां चटखाती रही। रिलैक्स होकर बैठो। आहिस्तगी से उसका हाथ थपथपाकर बाहर निकल गई। कमरे में खड़ी मुलाजमाएं भी फौरन गायब हो गईं। वो कुछ इस तरह भी अंदाज में खड़ी हुई, फिर सोफे किनारे पर टिक गई। चारसो बहुत गहरी खामोशी थी, और इस सन्नाटे में अपने दिल के धड़कने की आवाज़ साफ सुन सकती थी। पता नहीं सबके साथ यही सिचुएशन होती है, या मैं ही कुछ ज़्यादा पजल हो रही हूँ। खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, लंबे लंबे सांस खींचे, तभी सीढ़ियों पर कदमों की चाप उभरी। कोई बहुत तेजी मगर मगन से अंदाज में सीढ़ियां चढ़ रहा था। ऐना का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो इसी तेजी और मगन से अंदाज में दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था और सलाम किया। हशाश बशाश तरोताज़ा लहजा। जवाब तो ऐना ने भी दिया था। आवाज़ कहीं हलक में घुट कर रह गई थी। इसी अंदाज में सोफे के दूसरे किनारे पर बैठ गया। तबीयत कैसी है अब? ऐना ने ज़रा सा खनकार कर गला साफ किया। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे आपने हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। पुरतबस्सुम लहजे में किया गया हल्का सा शिकवा ऐना को थोड़ा सा शर्मिंदा कर गया। उसने चोर नज़रों से इसे देखा। वो गिलास में पानी डाल रहा था। रात कैसी गुजरी? ठीक। दोबारा अपनी चूड़ियों से खेलने लगी थी। ठीक या? मायने खेज लहजे में कहते हुए गर्दन मोड़कर इसे देखने लगा। लबों पर एक गहरी सी मुस्कुराहट आंध की थी। ऐना की हथेलियों पर पसीना सा उतर आया। कुछ मुनासिब जवाब ना सोचा, उंगलियां चटखाने लगी। चले, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वो नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। क्या लेंगी आप? आप लें, मैं लेती हूँ। संभल कर पहला मुकम्मल जुमला बोला था। वो भी इसकी घबराहट पा गया था, सो नाश्ते से इंसाफ करने लगा। वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ चीज़ें इसे ऑफ़र करता रहा था। वो बस फ्राई अंडा प्लेट में डाले कांटे से गोदती रही। जैसे इसने हाथ खींचा, ऐना ने प्लेट रख दी थी। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। इसके प्लेट में अंडा जूं का तू मौजूद था। मेरा जी नहीं चाह रहा। किसी ख़ास चीज़ को जी चाहता हो तो? नहीं, बस मुझे भूख नहीं। ठीक है, चाय बनाएं अपने लिए भी और मेरे लिए भी। कदरे रिलैक्स होकर बैठते एक बाजू सोफे की पुश्त पर फैलाकर वो इसे ही देख रहा था। ऐना ने महसूस किया इसकी घबराहट पहले से कम हो गई थी। शायद ये रईस के नॉर्मल अंदाज, दोस्ताना लहजे का एजाज था। इसने चाय सिर्फ रईस के लिए बनाई और कप इसकी तरफ बढ़ा दिया। गोया आज नाश्ते की मुकम्मल हड़ताल है। वो कुछ नहीं बोली, हल्का सा मुस्कुराई थी, और ये पहली मुस्कुराहट थी जो तब से अब तक इसके चेहरे पर आई थी। रईस कुछ कहते कहते रुक गया।
चाय के दौरान भी बस वही बोलता रहा, अपनी दिलचस्पियाँ, मशगले, मसरूफियत, ज़मीनें, इलेक्शन। कभी कोई सवाल पूछ भी लेता तो हूँ हाँ से ज़्यादा जवाब नहीं दे सकी थी। फिर वो एकदम खामोश हो गया। इसकी नज़रें गाहे बगाहे ऐना की तरफ उठती, मगर वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। ऐना की इसकी अचानक खामोशी से खाइफ सी होगी, घबरा कर पूछने लगी, आप बोल क्यों नहीं रहे? जब सामने से कोई रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो तो खामोश होना ही बेहतर है। इसके लहजे में संजीदगी दर आई। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सुन रही थी। मुझे सिर्फ एक अच्छे सामे की ज़रूरत नहीं है ना, क्या तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं पूछना? आपको गुस्सा तो नहीं आता? झिझकते लहजे में बेहद मासूमियत लिए सवाल किया गया। रईस ने बमुश्किल अपनी मुस्कुराहट का गला घोंटा और संजीदगी से गोया हुआ, बहुत आता है। हैं? हैना ने सर उठाकर इसे देखा, फिर पूछने लगी, मुझ पर भी गुस्सा होंगे? तुम ऐसी बात ही मत करना कि मुझे गुस्सा है। वो सहूलत से आपसे तुम पर आ गया था। गोया जी हजूरी करनी होगी, इसने खासी मायूसी से सोचा। टिपिकल सोच, बीवियों से हर बात मनवाने वाली। रईस अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करता और दोस्तों से कभी ज्यादती नहीं करता, यह असूल की बात है। इंसान के रवैये में लचक होनी चाहिए, असूलों पर कोई लचक नहीं। असूल इंसानों के लिए होते हैं, इंसान असूलों के लिए नहीं। बहस पर आमादा हो गई। माफ़ करना अच्छी बात है, हर बात माफ़ नहीं की जा सकती। रईस का लहजा बेलचक और ठोस था। आपका ये रवैया हर किसी के साथ ऐसा ही होता है? वो चिढ़ सी गई थी। मैंने कहा ना, दोस्तों के साथ तो बिल्कुल नहीं। और मैं कहाँ आती हूँ? रईस का कहा भरपूर था। इसका तय्युम तुम खुद करोगी। वैसे क्या दुश्मनी का इरादा है? मैं खासी मासूम सी लड़की हूँ, ऐसे काम मुझे नहीं आते। खैर, तुम शक्ल से इतनी भी मासूम नहीं लगती। आप? वो न जाने क्या कहने जा रही थी। रईस ने हाथ उठाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया, फिर जेब से मखमली डिबिया निकालकर इसमें से रिंग निकाल ली। लड़ने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है, ये एक छोटा सा हकीर सा तोहफा है, न जाने पसंद भी आएगा या नहीं। लाओ पहना दूं। रईस ने हाथ बढ़ाया। ऐना ने झिझकते अपना हाथ सामने किया था। उसने आहिस्तगी से थाम लिया। ऐना, ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे साथ की ख्वाहिश की हो, लेकिन जब तुम्हारी तस्वीर मेरे सामने आई तो मुझे लगा तुम मेरी किस्मत में लिख दी गई हो। मुझे यकीन है कि हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरी तरफ से तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम जिस तरह रहना चाहो, जहाँ जाना चाहो, बस एतबार इस रिश्ते की आसास होगी। एतबार करना है तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर। इसका मध्यम दोस्ताना लहजा ऐना को पुरसकून कर गया। रिंग पहनाकर इसका हाथ लबों तक ले गया। ऐना ने बेख्तियार हाथ खींच लिया। वो हंस दिया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। नीचे चलें? इससे कब्र के वो जवाब देती दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यस, रईस ने कहा तो अनीसा अंदर आई। आपका फ़ोन है रईस भाई। तो वो अपनी भाभी को कंपनी दो। अनीसा के सर पर चपत लगाता बाहर निकल गया। भाई ने क्या दिया? अनीसा करीब आकर इश्तियाक से पूछने लगी। ऐना ने हाथ आगे कर दिया। बहुत खूबसूरत है। आपको हमारे भाई कैसे लगे? इतनी जल्दी क्या राय कायम हो सकती है? ऐना धीरे से बोली। इसके चेहरे पर छाई शर्मगी से मुस्कान बताती थी कि इसकी राय इतनी भी बुरी नहीं। शाम को वलीमा था। अम्मी, साद और नूर इसे लेने आए थे। रईस ने माजरत कर ली, इसे किसी काम के सिलसिले में कराची जाना था और 4 दिन के बाद आना था। ऐना मुतमईन से घर वालों के साथ वापस आई थी। 4 दिन के बाद रईस और माजी से लेने आए थे नूर और सादिया, जो रईस भाई से तफसीली मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे। खासे मायूस हुए कि वो लोग बहुत कम वक्त के लिए आए थे। खाने के फ़ौरन बाद उन्होंने इजाज़त चाही। समझते क्या है रईस भाई खुद को कहीं के प्राइम मिनिस्टर लगे हैं क्या? नूर कमरे में आकर बुड़बुड़ाने लगी। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मौसूफ खुद को क्या समझते हैं। जेवर पहनते सख्त झुंझलाहट का शिकार हो रही थी, फिर कड़े फेंक कर दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर बैठ गई। तुम्हें क्या हुआ? वो अपना शिकवा भूल गई। मुझसे नहीं हो रहा ये सब, वो चिल्लाई। नेल पॉलिश लगाते हाथ कांप रहे थे। आईलाइनर की लाइन ठीक नहीं बनी थी। जेवर कई बार हाथ से छोटा था। है ना, नूर इसके पास है तो इसने नूर के हाथ दबोच लिए। मुझे सख्त घबराहट हो रही है नूर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं जाना। और नूर इससे ज़्यादा घबरा गई। मैं अम्मी को बुलाती हूँ। ऐना बेटी, क्या हुआ? अम्मी अंदर आई तो वो इनसे लिपट कर रोई, रोती ही चली गई। अम्मी की अपनी आंखें भर आईं। अम्मी, मैंने नहीं जाना। क्या फजूल बोलती हो? भीगी भीगी सी हंसी हंस दी। महज ऐना की वजह से खुद को संभाल रही थी। बेटियों को अपने घर जाना ही होता है। शुक्र करो तुम्हें इतने अच्छे लोग मिले हैं। बस अम्मी 2-4 दिन और रोक लें। मैंने कहा भी था कि मैंने शादी नहीं करनी। आखिरी जुमला बेहद झुंझला कर कहा गया था। बस। अम्मी ने झटके से इसे खुद से अलग किया। बेहद खफगी से गोया हुई।
खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो नूर इसका मेकअप ठीक करके बाहर लाओ, इन लोगों को जल्दी है। अम्मी के बाहर जाती सो सो करती नूर इससे लिपट गई और रही सही कसर भी पूरी कर दी। माँ जी ने इसका रोया रोया रूप देखा तो गले से लगाकर प्यार करते हुए बोली, कोई दूर थोड़ी जा रही हो, जब दिल चाहे मिलने चली आना। साथ मुसलसल रईस के साथ महवे गुफ्तगू था। अम्मी ने हंसते हुए नूर की शिकायत रईस तक पहुंचाई तो वो इसका सर थपथपाते शफकत भरे लहजे में गोया हुआ, फिर आएंगे तो लंबी नशिस्त रहेगी, बल्कि अब तुम लोग आना। नूर तो इसके लहजे पर ही निहाल हो गई थी। घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, करीब नज़दीक के तमाम मेहमान जा चुके थे। बीबी ज़ैनब उनका इंतज़ार कर रही थी। खाना वो लोग खा कर ही आए थे। बीबी चाय का एक कप मेरे कमरे में भिजवा दीजिएगा। रईस कहकर ऊपर चला गया तो ऐना कदरे मुतमईन से होकर बैठ गई। माँ जी रईस से इधर उधर की बातें करने लगी। अनीसा कहाँ है आंटी? आंटी, रईस की तरह तुम भी मुझे माँ जी कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा, उन्होंने शफकत से टोका। जी। अनीसा के तो पर्चे थे, बमुश्किल 2 दिन ही निकाल सकी थी। परसों वापस हॉस्टल चली गई। बस ना रईस घर पर होता है ना अनीसा, हम 2 बूढ़ी जानने और नौकर। अब तुम आ गई हो मेरे घर की रौनक, तुम्हारे बहाने रईस भी आ जाया करेगा, वरना इसका दिल शहर में नहीं लगता। पहले मैं भी वहीं हुआ करती थी, अब मेरी तबीयत का कुछ भरोसा नहीं, कब बिगड़ जाए। यहाँ से डॉक्टर को बुलाना या हॉस्पिटल जाना आसान होता है बेटे, यहाँ से डॉक्टर। उन्होंने तफसील से बताया डॉक्टर के बारे में। बीबी ज़ैनब चाय लेकर आई थी। चाय के बाद भी वो इसे रईस और अनीसा के बचपन की बातें सुनाती रहीं। तभी घड़ी ने 11 बजे तो चौंक गई। इतनी रात हो गई? ज़ैनब जाओ, बहू को इसके कमरे में छोड़ाओ, फ्रिज में दूध और फ्रूट भी रख देना। आओ धीरानी। धीरानी बादले नाखास्ता उठी थी। सीढ़ियाँ अबूर करके ऊपर आई तो कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वो काउच पे नीम दराज टीवी देखने में मसरूफ था। इसे देखकर चौंका, हल्का सा मुस्कुरा दिया। लो मियाँ, अपनी अमानत संभालो, बीबी ज़ैनब ने कहा और फ्रिज में चीज़ें रखने लगी। कमरे में सब कुछ वैसे का वैसा था। गुलदान में अधखिले गुलाब मुस्कुरा रहे थे। बीबी से दुआ देते हुए चली गई। कमरे में टीवी चल रहा था। बैठ जाओ, है ना, तुम्हारा ही बेडरूम है। सिंगल सोफे के किनारे पर टिक गई। रईस चैनल बदलने लगा। दिल ने ये कहा है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुमसे। गाने के बोल रईस के लबों पर फैली हल्की शौक मुस्कुराहट इसे पजल कर रही थी। वो वहीं बैठी उंगलियां चटखाती रही। न जाने कितना वक्त गुजरा था जब इसने टीवी ऑफ करते इसकी तरफ देखा। भरपूर मुस्कुराहट इसके लबों का अहाता किए हुए थी। बोला तो मायने खेज लहजा था। हाँ जी, क्या रात यूं ही गुजारनी है? ऐना की सांस सीने में अटक कर रह गई थी। वो दिल धड़कना ही उसका भूल गया था। शुमाली इलाका जात से वापस आए तो गोया वो अपने सारे खदशे, सारे वाहिमे वहीं किसी पहाड़ी के दामन में दफन कर आई थी। इसका खिला खिला शादाब चेहरा अंदरूनी खुशी का अक्कास था। रईस बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा सोच सोच कर वो परेशान होती रही। बज़ाहिर सख्त और संजीदा नजर आने वाला अंदर से इतना नर्म और मोहब्बत करने वाला था, और वो इसकी मोहब्बतों की असीर हो गई थी। हर बात का आगाज़ रईस के नाम से होता तो इख्तिताम भी इसी के नाम से। नूर दांत पीसने लगती। जितनी दफ़ा रईस का जिक्र करती इतनी बार वो कहती इसे पकड़कर जूते लगाओ। ऐना खुद नहीं जानती थी वो इतना कैसे बदल गई। ये सब इसकी मोहब्बतों का एजाज़ था। वहाँ से आते ही दावतों का सिलसिला शुरू हो गया। इसे हैरत हुई जब माँ जी ने अपने ख़ानदान में से किसी की दावत कबूल नहीं की, जबकि ऐना के ख़ानदान की तमाम दावतों को बखुशी कबूल किया था। उसने रईस से पूछा तो वो आराम से बोला, ये माँ जी का डिपार्टमेंट है, मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। आपने वलीमा गांव में क्यों नहीं किया? क्यों? वैसे ही इसी बहाने में गांव देखा थी, वहाँ भी तो आपके रिश्तेदार रहते होंगे। वो अपनी चूड़ियों से खेलते सरसरी सा पूछ रही थी। कुछ ख़ास नहीं, लेकिन ऐना तुम्हें बहाने की क्या ज़रूरत है, वैसे किसी दिन ले चलेंगे गाँव। रईस ने कहा तो मुस्कुरा दी। रूटीन लाइफ शुरू हुई तो रईस गाँव जाने लगा। हर रोज़ कहकर जाता 2 दिन बाद आऊँगा, और हर रोज़ आ जाता। फिर झुंझला कर कहता क्या चीज़ हो तुम, खींच लेती हो। वो खिलखिलाकर हंस देती। रईस, मुझे आज ताए जान की तरफ जाना है। चाय का मग साइड टेबल पर रखते हुए ऐना ने कहा। ऐना को इसकी एक ही आदत बुरी लगती थी कि वह चाय बहुत पीता था। गाड़ी तो मौजूद होगी, चली जाना। ड्रेसिंग टेबल के सामने था। परफ्यूम स्प्रे करता हुआ इसकी तरफ पलटा। आप रात को आएंगे? नहीं, 2-3 दिन लग जाएंगे। इसने करीब आकर मग उठा लिया। 2-3 दिन? ऐना ने आंखें फैलाई। जानते हैं ना कैसे गुजरते हैं? जानता हूँ जाना, मगर मजबूरी है, काम है थोड़ा। बहुत प्यार से इसका गाल थपथपाते सोफे पर बैठ गया। ऐना ने कुछ लम्हे सोचा,
پھر اشتیاق سے فلور کشن کھینچ کر سامنے بیٹھتے پوچھنے لگی، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ تم کیا کرو گی؟ آپ کے ساتھ رہوں گی، میں گاؤں میں نہیں رہوں گا، ڈیرے پر جاؤں گا۔ تو میں ڈیرے پر رہ لوں گی، ڈیرے پر ایسی سہولتیں نہیں ہیں کہ میں تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ رئیس کے لہجے میں ہلکی سی ناگواری در آئی تھی۔ آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ نہر کے کنارے بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، لیکن وہاں سانپ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تم تو چھوٹے سے سانپ کے بچے سے ڈر جاتی ہو۔ آپ لے جانا نہیں چاہتے؟ پاگل، ضد نہیں کرتے؟ مگ رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اینا والیٹ کے ساتھ گولیوں کا بیلٹ دیکھ کر بری طرح چونکی۔ گولیاں ہیں، رئیس نے سادہ نارمل انداز میں بتایا۔ رئیس یہ کیوں رکھتے ہیں اپنے پاس؟ یوں ہی روب کے لیے، گاؤں میں رکھنا پڑتا ہے خامہ خائی میں، بس رہنے دیں آپ۔ کتنی ڈرپوک سی بیوی ہے میری۔ وہ اس کی ناک کھینچتا ہوا ہنسا۔ یوں ہی رکھتے ہیں اپنے پاس، کوئی فکر کی بات نہیں، گاؤں میں سب اپنے سجن ہیں۔ اب ایسا ہے کہ تم اپنا خیال رکھنا، تایا کی طرف چلی جانا چاہو تو 2 دن رک جانا، لیکن تھوڑا زیادہ راہ تو دے جاؤ، آخر 3 دن لگیں گے۔ آخر میں اس کا لہجہ، انداز دونوں بدل گئے تھے۔ اس نے خواب دیکھا تھا، شہر کی سب سے اونچی کھڑکی کے پیچھے سے ایک نیا سورج نکلا ہے۔ رائمہ فل آواز میں ڈیک چلا کر الماری ٹھیک کر رہی تھی۔ روشنا کسی انگریزی ناول میں مگن تھی۔ رمشا ابھی تک کالج سے نہیں لوٹی تھی۔ ایک ہی شہر تھا، مگر اینا کو یہ سہولت تو تھی کہ جب بھی اداس ہوتی ان کی طرف آ جاتی۔ اس وقت بھی وہ بیزار سی اٹھی تھی کہ چائے وہ خود بنائے گی۔ روشنا نے اس کے اس فیصلے کو خاصا سراہا تھا۔ تائی جان کھانا بنا رہی تھی، ان کے منع کرنے کے باوجود اس نے کیتلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھ دی۔ وہ اسے چھوٹی چھوٹی گھر کی باتیں بتانے لگیں۔ تائی جان، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کاموں کے لیے ملازم موجود ہیں، کچن بی بی زینب کے حوالے، میں تو سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں۔ یہ بی بی زینب کون ہے؟ کوئی دور پرے کی عزیز ہیں، شوہر فوت ہو گیا، اولاد تھی نہیں، بہت عرصے سے ماں جی کے ساتھ ہی ہیں۔ چلو اچھا ہے، تمہاری ساس کو بھی دوسراہٹ رہتی ہوگی، اللہ کا شکر ہے تمہیں سسرال اچھی مل گئی۔ یہ کہتے ہوئے جو تاثر ان کے لہجے میں ابھرا تھا، اینا نے اسے پوری طرح محسوس کیا۔ وہ دل سے چاہتی تھی کہ رمشا اپنے گھر کی ہو جائے، مگر رمشا کی ضد۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ رمشا اینا نہیں جسے اب زبردستی منا لیا جائے، اور اب تو وہ سنجیدگی سے سوچ رہی تھی کہ روشنا کی کہیں بات طے کر دیں۔ یہ چائے کی خوشبو تو دماغ کو چڑھ رہی ہے۔ اینا ایک دم ناک پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ہٹی۔ تائی جان، آپ چائے چھان دیں، میں روشنا کو بھیجتی ہوں۔ تیزی سے باہر نکل گئی۔ تائی نے ذرا تشویش سے اسے دیکھا، خود ہی چائے نکال کر پیچھے چلی آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، روشنا اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ یوں ہی کمزوری سے محسوس ہو رہی، ذرا سے چکر آ گیا تھا۔ وہ ان کی تسلی کے لیے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں، پہلی بار ہوا۔ بس تائی کو ایک نئی فکر لاحق ہو گئی۔ روشنا ہنس دی۔ اینا نے چونک کر تائی کو دیکھا جو روشنا کو ڈانٹنے لگی تھی، تمہیں ایسا ڈاکٹر کے پاس چلنا۔ آخر میں انہوں نے اینا سے کہا تھا۔ ارے نہیں تائی جان، ایسا کچھ نہیں، چپ کرو، مجھ سے زیادہ نہیں پتا تمہیں، انہوں نے ڈپٹ کر کہا۔ وہ صرف تائی جان کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، جس کی رپورٹ نے بتایا کہ تائی جان کا خیال غلط نہ تھا، خدا اس پر مہربان ہو گیا تھا۔ ماں جی نے خبر سنی تو بہت دیر سجدے سے سر نہ اٹھایا۔ رئیس نہیں ہوتے تھے تو اسے نیند ہی نہیں آتی تھی، بس ٹی وی کے چینل بدلتے بدلتے آدھی رات گزار دیتی۔ ماں جی کچھ دیر لیٹی رہتی، پھر انہیں تسبیح کرنا ہوتی تو اسے آرام کرنے کا کہہ کر اٹھ جاتی۔ اب بھی انہوں نے آتی سے ڈانٹ پلائی تھی، بیٹی کتنی بار کہا ایسی حالت میں شیطان کا ڈبہ زیادہ مت دیکھا کرو، سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرو۔ ان کے ڈانٹ میں اتنا پیار اور مان تھا، اس نے چون چرا کیے بغیر ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا۔ وہ اس سعادت مندی پر نہال ہو کر دعائیں دینے لگی۔ رئیس کا فون نہیں آیا ماں جی؟ نہیں، خود میں نے بھی نہیں کیا، وہ آئے گا تو ہی خوشخبری سناؤں گی۔ اینا نے ان 4 دنوں میں محسوس کیا تھا وہ جتنی زیادہ خوش تھیں اتنی ڈری ہوئی بھی تھیں، جیسے بہت ہی انمول خوشی بڑی دقتوں کے بعد ہاتھ آنے والی ہو۔ حتیٰ کہ بی بی زینب کے سوا کسی اور گھریلو ملازموں کو اس خوشخبری کی ہوا تک نہ لگنے دی تھی۔ اینا کو ہی منع کر دیا۔ کچھ لمحے زیر لب پڑھ پڑھ کر اس پر پھونکتی رہیں، آرام کی تاکید کرتے ہوئے چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں بی بی زینب دودھ اور فروٹ لے آئیں۔ ابھی تو کھانا کھائے بی بی، وہ چڑ گئی۔ دودھ تو دھیرانی ضروری پینا ہوگا، فریج میں رکھ دیں بی بی، سب کچھ تھوڑی دیر میں لے لوں گی، پھر تم سو جاؤ گی، ابھی مجھے نیند نہیں آ رہی، بچوں کی طرح ٹھنکتے بول رہی تھی۔ اس کا انداز دیکھ کر زینب نے سب کچھ فریج میں رکھ دیا اور نصیحت کرنے سے باز نہ آئی۔ پوری نیند لیا کرو دھیے، ٹھیک سے کھایا پیا کرو، تو کیا جانے کتنے برسوں کے بعد یہ خوشی اس گھر اور حویلی کا حصہ بنی ہے۔ کیسا خوف سمایا ہم سب کے دلوں میں، اللہ تجھے ساتھ خیریت کے فارغ کرے، آنے والا زندگی اور صحت پائے تو حویلی کا مقدر جاگ جائے۔
कितने बरस बीबी ज़ैनब, हमारी शादी को तो अभी साल भी नहीं हुआ। अपने ख्यालों में बुड़बुड़ाती ज़ैनब चौंकी, मुस्कुरा दिया, आहिस्तगी से इसका सर थपथपाकर चली गई। हद करते हैं ये लोग भी, सीधे सादे मसले को पुरस्कार बना देते हैं। बेड पर चित लेट गई, गर्दन घुमाकर साइड पर रखी रईस की तस्वीर को देखने लगी। कहाँ है रईस, अब आ भी जाएं। जितनी शिद्दत से इसने इन दिनों रईस का इंतज़ार किया था, ऐना के ख्याल में से वैसे ही आ जाना चाहिए था। याद है रईस, जब मेरी चाहत आपको आधी रात को भी खींच लाती थी, अब मेरी चाहतों की शिद्दत में तो कोई कमी नहीं आई। आप कहाँ रुक गए? इसकी तस्वीर से बातें करते करते न जाने कब नींद की मेहरबान देवी ने इसे अपनी आगोश में ले लिया। बहुत गहरी पुरसकून नींद, और फिर नींद से ख्वाब तक का सफ़र। वही हवेली थी, वही गहमा गहमी, शोर हंगामा, जश्न खुशी, हर चेहरा रोशन जगमगाता, और ख़ुद शहजादियों किसी आन बान के साथ इन सब के बीच बैठी थी। मिठाइयों के थाल भर भर आ रहे हैं और वो हाथ भर भर तकसीम कर रही है। इतनी मिठाई न जाने किसने पूछा था, रईस लाया है, न जाने किसने बताया था। इसके सामने गोरे सांवले गंदुमी छोटे बड़े हाथ आ रहे थे और भर भर कर जा रहे थे। तभी इसके सामने दुआ के अंदाज में जुड़ी हुई हथेलियां आ गईं। वो ठिठक सी गई, न जाने क्यों, मगर ये हथेलियां उसे सबसे मुख्तलिफ लगी थी। जर्दी माइल सफ़ेद हाथ, जिसकी दाएं हथेली के ऐन दरमियान स्याह तिल था। यह हाथ किसके थे? ऐना ने सोचा नहीं था, बस इसे लगा इसे आम लोगों की तरह मिठाई नहीं दे सकती। प्लेट दो। इसके सामने प्लेट आ गई थी। इसने हर थाल से चुन चुन कर बहुत सारी मिठाई इस प्लेट में भरी, और प्लेट इन हाथों में देकर सफ़ेद रुमाल से ढांप दी थी। इन हाथों ने इस प्लेट को तबर्रुक की तरह संभाला, और तभी ऐना की आंख खुल गई। कुछ लम्हे गायब दिमागी के साथ पड़ी रही, फिर इसके वजूद में जुम्बिश हुई। इसने करवट बदल ली। वाल क्लॉक पर नज़र पड़ते ही अंदाज़ा हुआ कि इसकी नींद का दौरानिया ज़्यादा तवील नहीं, यही कोई 15-20 मिनट। साथ ही से याद आया कि इसने ख्वाब पहली बार नहीं देखा, वो ये सब पहले भी देख चुकी है, और अब शायद शादी से चंद रोज़ पहले, ये शादी की रात, मगर वो ये ख्वाब पहले भी देख चुकी थी। ऐना उलझ कर रह गई। हवेली के पस मंज़र में वो हाथ किसके थे? जिस अंदाज में माँ जी ने रईस को खुशखबरी सुनाई थी, वो अंदाज दीदनी था। एक नज़र ऐना पर डालकर वो माँ जी का चेहरा तकने लगा, और ऐना इन दोनों को। इसके कानों में अभी तक नूर और साद की आवाज़ें थी, खुशी से मामूर चहकती आवाज़ें। ऐना, मैं खाला बन जाऊंगी। ऐना, कमरे में मेरी तस्वीर लटका लो, सुबह शाम दर्शन करना। मेरा भांजा मेरे जैसा होना चाहिए। और यहाँ रईस ने इसकी निगाहों की तपिश को महसूस किया, सर उठाकर इसे देखा और मुस्कुरा दिया, मगर वो बददिल से हो गई थी। रईस से जिस गर्म जोशी की तवक्को वो कर रही थी, वो मफकूद था। वो उठकर ऊपर आ गई। मौसम बदल सा गया था। स्याह बादल घिर कर आ रहे थे। रेलिंग से लिपटी सफ़ेद बेल से सफ़ेद फूल टूट टूट कर बरस रहे थे। हवाओं में मस्ती और नमी थी। शायद दूर कहीं बादल खुलकर बरसे थे। कभी यही मौसम इसे दीवाना कर दिया करता था। अब वो दोनों कोनियाँ टिकाए, ज़रा सा सर उठाकर बादलों को देखते हुए माँ जी और रईस के रवैये के बारे में सोच रही थी, जब अकब से इसने उसे अपने हिसार में जकड़ लिया। ऐना ने पलट कर देखना चाहा, इसने पलटने नहीं दिया। जाने रईस, बस रईस मत करें। आज इसकी शिद्दतों से उलझन हो रही थी। क्यों ना करूं, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। खुशखबरी? आप खुश हैं? क्या नहीं होना चाहिए? उल्टा इसी से पूछने लगा। मुझे लगा आप खुश नहीं, खौफजदा हो गए। रईस की गिरफ्त कमज़ोर पड़ गई तो वह आहिस्तगी से पलट कर इसे देखने लगी। ऐसा क्यों है रईस? आप, माँ जी, बीबी ज़ैनब, सबके रवैये में कोई चीज़ है जो खटकती है। पागल, ऐसी बात नहीं। वो इसे झुठलाने लगा। बस ये मरहला बहुत दुश्वार है और तुम बहुत नाजुक सी हो। अगर किसी को खौफजदा होना चाहिए तो मुझे होना चाहिए। आप जैसा शख्स इस तरह बिहेव करेगा तो परेशानी तो होगी ना। ऐना उलझी हुई थी। पागल लड़की, मैं खुश हूँ, बहुत खुश। हमारे ख़ानदान का वारिस। वारिस? ऐना ने संजीदा नज़रों से इसे देखा। रिवायती ज़िम्मेदारों की तरह सिर्फ वारिस के बारे में क्यों सोच रहे हैं? हमें तो गुड़िया भी इतनी प्यारी होगी, बस तुम्हारे जैसी बगैर नाक की नहीं होनी चाहिए। वो इसकी छोटी सी नाक पर उंगली मारते बोला तो खफा सी हो गई। आपके जैसी फैली नाक भी नहीं होगी। चलो, तय हो गया, ना तुम्हारी जैसी ना मेरे जैसी। बल्कि बादल ज़ोर से गरजे। ऐना ने इसके बाजू दबोच कर एकदम सर उठाकर ऊपर देखा। बादल बरस पड़े तो इसके मुंह से बेअख्तियार निकला, रईस, बारिश। इसके चेहरे पर कौसो कज़ा के रंगों की तरह बिखरती मुस्कुराहट ने इसे मबहूत सा कर दिया। यह इस खुशखबरी का असर था, यह अचानक खूबसूरत हो जाने वाले मौसम का एजाज। वो इतनी खूबसूरत पहले कभी नहीं लगी थी। तभी ऐना ने उसका हाथ थाम लिया। चलें, बारिश में नहाते हैं। बीमार हो जाओगी। अपने खूबसूरत एहसासात से हाथ छुड़ाकर इसने सर्जनिश की।
गर्मियों की बारिश में कौन बीमार होता है। वो खिलखिलाकर हंसी। अंदर चलते हैं ना। इस मौसम में अंदर बैठेंगे। वो इसका हाथ झटक कर पीछे हटी और दोनों बाजू फैलाकर चेहरा ऊपर उठा लिया। आए ना, बारिश में नहाएं, शोर मचाएं, खूब हल्ला गुल्ला करें। बारिश इसे हमेशा यूं ही बेताब और पागल करती थी। है ना, अंदर चलो। रईस ने आगे बढ़कर इसका बाजू थामा। ना करने के बावजूद खींचता हुआ अंदर ले गया। ऐना ने कमरे के दरवाजे के करीब जाकर अपना बाजू छुड़ाया, फिर वहीं खड़ी होकर बारिश देखने लगी। उसके चेहरे पर हल्की सी खफगी झलकने लगी थी। पौधों का सब्ज रंग कुछ और निखर आया था। शाखों में छुपे सफ़ेद फूल कुछ और ताज़ा हो गए थे। आसमान पर एक भीगा परिंदा छुपने के लिए बेताब था। बारिश इसके परों को बेजान कर रही थी। रईस खामोश सा जाकर काउच पर बैठ गया। ऐना को अचानक इस माहौल पर उदासी और खामोशी छाती महसूस हुई। बस तेज होती बारिश की आवाज़ थी जो इस खामोशी को तोड़ रही थी। छई छप्पा छई, पानियों पे छींटे उड़ाती हुई लड़की। साथ की शोखो शरीर आवाज़ बारिश के साथ ताल मिलाने लगी। क्या कर रहे होंगे सब। ऐना के अंदर एकदम इस माहौल का हिस्सा बनने की ख्वाहिश उभरी तो वो रईस की तरफ पलटी। बारिश अब इसके अक्ब में शोर मचा रही थी। रईस, मुझे घर जाना है। रईस ने चौंक कर इसे देखा तो फिर से पलटकर बाहर झांकने लगी, जैसे खुद कलामी किसी अंदाज में गोया हुई। वहाँ बारिश का रंग ही कुछ और होता है। अम्मी किचन में पकवान तलने लगती हैं। अब्बू ढेर सारे आम उठा लाते, साथ हाफ जीन्स पहनकर सड़कों पर निकल जाता। और पकवान यहाँ भी तले जा सकते हैं, आमों के ढेर भी लग सकते हैं। हाँ, मगर ये हाफ जीन्स। वो इसके पीछे आ खड़ा हुआ। ऐना खामोश सी हो गई। अचानक इसने पूछा, गांव में बारिश कैसी होती है। बारिश तो हर जगह एक जैसी होती है, इसने गोल मोल सा जवाब दिया। वो ऐना के गांव से मुतालिक तजस्सुस और इश्तियाक से अच्छी तरह वाकिफ था। रईस, गांव चलें, मैं गांव और हवेली देखना चाहती हूँ। वहाँ कुछ भी खास नहीं है ना, यूं ही कुछ दिन रहकर आ जाएंगे। आप भी तो जाते हैं। बजीद थी। जाएंगे, अभी तो गर्मी बहुत है। हस्बे मामूल टाल गया। ऐना चिढ़ कर बाहर निकल आई। अब के रईस ने भी इसे रोका नहीं था। माँ की गोद में सर रख कर लेटना क्या है, वो पहली बार महसूस कर रही थी। सुकून ही सुकून, सरूर ही सरूर। वो कब से इनकी गोद में सर रखे, दोनों बाजू इनकी कमर के गिर्द कसे एक ही जाविये पर लेटी थी। अभी चंद मिनट कबल अम्मी से उठाने आई। ऐना ने पकड़कर इन्हें भी बिठा लिया। जितनी खामोशी से वो पड़ी थी, अम्मी ने घबराकर खुद ही से झंझोड़ डाला। बस करो ऐना, कब तक यूँ पड़ी रहोगी। अम्मी, सुकून मिल रहा है, इसे उठा दें अम्मी, वरना मैं इसे उठाकर बाहर फेंक दूंगी। गज़ब खुदा का, जिस दिन से आई है सिवाय सोने के और कोई काम ही नहीं। हम बात करने को तरस जाते हैं। मोहतरमा उठती हैं, खाती हैं, फिर सो जाती हैं, फिर उठती हैं, खाना खाती हैं, दोबारा सो जाती हैं। नूर कफगीर यूँ लहरा रही थी जैसे 2 मिनट में ना उठी तो इसी से तवाज़ो करेगी। जिस दिन से ऐना की शादी हुई थी, अम्मी ने इसकी किताबों को अलमारी में लॉक करके इसे किचन में खड़ा कर दिया था। तुम्हें क्या मालूम लड़की, ख्वाब ससुराल में कितने भी ऐश करें, मैं कि आना कितनी बड़ी अय्याशी है। जमाई लेते गोया हुई। अच्छा उठ जाओ, नहा लो, कपड़े बदलो, फिर कुछ खा लो। अम्मी की हदायत पर वो उठकर किचन में घुस गई। पहले कुछ खा तो ले, मगर नहीं, पहले नहाओ जाकर। फिर वो नहा कर निकली तो बाल बनाने लगी। इसे यहाँ आए हुए बस चंद दिन ही हुए थे और कितनी जत्नों से रईस ने इसे आने की इजाज़त दी थी। तंग आकर वो लड़ पड़ी थी। वो मेरे अपने रईस, आपको क्यों लगता है मेरा ख्याल नहीं रखेंगे। माँ जी और बीबी ज़ैनब की बेतहाशा तवज्जो और मोहब्बत ने इसे तकरीबन मफलूज कर दिया था। रईस तो फिर भी अक्सर गांव जाते थे, मगर ये दोनों ख़वातीन इसे ज़िच कर देती थी। ये खाओ, ये ना खाओ, यहाँ बैठो, वहाँ खड़ी ना हो। वो हकीकतन वहाँ से फरार का रास्ता ढूंढ रही थी। रेगुलर चेकअप तो हो ही रहा था। माँ जी न जाने कहाँ कहाँ से तावीज़ मंगवा कर इसे पहनाती रहती, न जाने किन किन बुजुर्गों से दुआएं करवाती। इसे लगता वो अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले पा रही। जब वो लड़ते लड़ते रो दी तब रईस से यहाँ छोड़ गया था। इन चंद दिनों में सुबह शाम माँ जी और रईस के फ़ोन आ रहे थे। अम्मी रश करती हैं, ना चिढ़ जाती। मुझे तो लगता है बच्चा दुनिया का अनोखा बच्चा। ये मैं दुनिया की पहली औरत हूँ जो माँ बनने जा रही हूँ। शुक्र करो है ना, वरना वो औरतें भी हैं जिनके ससुराल वाले इन्हें इस हाल में पूछते तक नहीं। अम्मी लताड़ देती। अम्मी ज़्यादा मीठा भी कभी कभी जहर हो जाता है। तुम ना शुक्री हो, वो साफ कहती। ऐना बा भी जाओ। साथ शोर मचा रहा था। वो दुपट्टा ओढ़कर बाहर आ गई। तुम बहुत सुस्त होती जा रही हो ऐना आपी। साथ ने देखते शिकवा किया। सब टेबल पर इसका इंतज़ार कर रहे थे। नूर खाना लगा रही थी। मेरी फेवरेट डिशेज़। वो मेन्यू देखकर खुश हो गई। इसने सबसे पहले मसाला भरी मछली की तरफ हाथ बढ़ाया था।
रईस का फ़ोन आया था, वो कल तुम्हें लेने आ रहा है। अम्मी ने बताया तो इसका हाथ दरमियान में ही रुक गया था। अम्मी आपने बताया नहीं, मैंने कहा था कि थोड़े दिन और रहने दे, मगर वो नहीं माना। बल्कि मैंने तुम्हारी सास से भी कहा था कि हमारे यहाँ पहला बच्चा मैके में होता है, मगर वो लोग नहीं मानते। अब खुद बताओ मैं और कितना इसरार करूँ, बेचारगी से बोली थी। ऐना का खाने से दिल उचाट हो गया, फिर से इन्हीं पाबंदियों में जाने के ख्याल ने से परेशान सा कर दिया था। अब तो रईस की चाहतों बेताबियों से भी तस्कीन नहीं होती थी। यूँ लगता है सारी चाहते इसके लिए नहीं, बच्चे के लिए हैं। अच्छा खाना तो खाओ, अम्मी ने कहा मैं रईस से कहूँगी, वो जल्दी तुम्हें मिलाने लाता रहेगा। मेरी आज़ादी का आखिरी दिन। ऐना ने साद और नूर को देखा। तुमने सारे दिन सो सो कर गुजारे हैं। नूर सख्त खफा थी। इसे लेने रईस ही आया था, सबसे मिलकर गाड़ी में बैठी तो खफा से लहजे में पूछने लगा, तुमने मेरे बगैर इतने दिन कैसे गुजार लिए? बस वो हंस दी। आइंदा लेना तो नाम रहने का, साथ लाऊंगा और मिलाकर वापस ले जाऊंगा। कोई ज़बरदस्ती है? बिल्कुल है, वो आराम से बोला था। धौंस भरे लहजे में प्यार ही प्यार था। यूं ही दिन महीनों में ढलते गए। जब कायनात पर बहार ने अपने अव्वलीन कदम जमाए तो इसके आंगन में पहला फूल खिला था। वो बेटे की माँ बनी थी। वो बाल बनाते ड्रेसिंग टेबल के आईने में मुनक्किस होता रईस का अक्स देख रही थी। वो बेड पर दराज कोहनी के बल एक हाथ से सर को सहारा दिए बच्चे के साथ खेल रहा था। कभी इसके नन्हे मुन्ने पाँव छूता, कभी कोमल हाथों को लबों से लगाता, तो कभी झुककर इसकी नन्ही सी नाक चूम लेता। बड़ा मगन सा अंदाज था। एक अजीब सी सरशारी सरखुशी इसके वजूद का अहाता किए हुए थी। गांव से खा कितने ही ज़रूरी काम क्यों ना होता, वो रोज़ ही वापस आने लगा था। डिलीवरी के वक्त जो हालत माजी और रईस की थी वो सबके लिए चंबे का बाइस थी। यूँ लगता जैसे जान सूली पर लटकी हो। और जब डॉक्टर ने आकर माँ और बच्चे की खैरियत की इत्तला दी तो जिस तरह वो सजदे में गए वो भी काबिले हैरत ही था। हालांकि ऐना के अपने घर वाले वहीं मौजूद थे। वो उठकर रईस के करीब आ बैठी। रईस ने सर उठाकर इसे देखा, मुस्कुराया और फिर से बच्चे पर झुक गया। आपको तो बच्चे के सिवा कुछ और सोचता ही नहीं। खफा सी होकर उठने को थी, रईस ने इसकी कलाई पकड़कर खींच लिया। ऐसी तो कोई बात नहीं जाना, ऐसी बात है। बस यार मुझे यकीन नहीं होता ये जीता जागता वजूद मेरा है। रईस के लहजे में बेयकीनी सी थी। हद है दीवानगी की रईस, इसमें बेयकीनी की क्या बात है? आपके सामने ही तो है, अब दें इसे, मुझे फीड करवाना है। ऐना ने बच्चे को गोद में भर लिया तो रईस ने सीधे होकर दोनों हाथ सर के नीचे रख लिए। वो ऐन इसकी निगाहों के सामने थी। स्याह बाल बढ़कर कंधों से नीचे आ गए थे। मेकअप से मुबर्रा शफाफ चेहरा पता नहीं मज़ीद खूबसूरत हो गई थी, इसे लगने लगी थी। या ये ममता का रूप था जो इसके फरबही माइल वजूद को भी एक अजीब ही रूप अता कर रहा था। वो उठकर बैठ गया। इसके बिखरे बाल हाथ से समेटते हुए बोला, तुम दिन ब दिन निखरती जा रही हो, मोटी हो गई हूँ, बत्तख सी लगने लगी हूँ, आप मुझे बनाई मत। रईस का कहकहा बेसाख्ता था। पागल, कभी खुद को मेरी नज़र से देखो। आपको मुझे देखने की फुर्सत है? सारी मोहब्बत है तो ये ले गया। शिकवा कना लहजे में गोया हुई। बेटे से रकाबत? जी नहीं पागल, ये तोहफा भी तो तुम ही ने मुझे दिया है। झुककर बच्चे को देखने लगी। माँ जी कहती थी कि बच्चा हो बहू रईस की तस्वीर है। सुनो, तुम क्या गिफ्ट लोगी? मैंने क्या लेना है? फिर भी सब कुछ तो मिल गया रईस, इतना अच्छा ससुराल, मोहब्बत करने वाला शौहर, औलाद। अब और मुझे क्या चाहिए? फिर भी कुछ तो मांगो, कोई डायमंड सेट या। ऐना के जहन में झमाका सा हुआ। इसने गर्दन मोड़कर रईस को देखा। जो मांगूंगी देंगे? बस मैं हुआ तो ज़रूर। आपके बस में है, पहले वादा करें जो मांगूंगी देंगे। ये रईस की ज़ुबान है जनाब, कहो। वो अपने मखसूस लहजे में गोया हुआ और इसके बाद वो जानती थी अपनी कहीं बात से 1 इंच नहीं हटेगा। तभी आहिस्तगी से गोया हुई, मुझे गांव ले चलें। साथ ही इसके चेहरे के तासुरात जांचे। वहाँ जामिद खामोशी छा गई थी। एक तवील सांस लेकर वो ज़रा पीछे खिसका, बेड क्राउन से टेक लगाकर इसे देखने लगा। ऐना को इसकी निगाहों से उलझन होने लगी थी। फिर वो पूछने लगा, क्यों जाना चाहती हो? आप क्यों नहीं ले जाना चाहते? उल्टा पूछने लगी। ऐना, आप वादा कर चुके हैं। तेजी से गोया हुई। रईस लब भींच कर इसे देखने लगा। तवील सांस लेकर रह गया। ठीक है, तैयारी कर लो, हम गांव जाएंगे। इसे गांव आए 3रा दिन था। माँ जी बहुत परेशान हुई। उन्होंने ऐना और रईस को रोकने की बहुत कोशिश भी की थी। रईस ने इन्हें क्या कहकर खामोश करवाया ऐना नहीं जानती थी। बहरहाल वो लोग गाँव आ गए थे। रईस ने माँ जी के कहने पर दोबारा देगे पकवाकर तकसीम करवाई थी। दीनों हलवाई डेवड़ी में अपने सामान समेत आ बैठा था। 3 दिन मिठाई बंटती रही। वो कभी कभार यूं ही बीबी ज़ैनब के पास आ बैठती। आने वाली औरतों और बच्चियों में मिठाई बांटा करती। बहुत गौर से इन्हें देखती,
मगर बीबी ज़ैनब इसे ज़्यादा देर वहाँ बैठने नहीं देती थी, फ़ौरन किसी न किसी बहाने उठा देती। माँ जी के पास औरतों का तांता बंधा रहता, वहाँ भी माँ जी फ़ौरन अहमद को इसके गोद में देकर गोया हुक्म देती, जाओ इसे सुला दो, जैसे इसे वहाँ से हटाना चाहती हूँ। ऐना ने महसूस किया वो इसका औरतों में ज़्यादा बैठना पसंद नहीं करती और अहमद पर तो किसी का साया भी नहीं पड़ने देना चाहती थी। शाम को बाकायदगी से इनकी नज़र उतरवाती, वो यहाँ भी बस अपने कमरे में मैसूर होकर रह गई थी। रईस अलग सारा दिन अपने कामों में मसरूफ़ होते थे, मजबूरी है ना, गांव आकर फारिग नहीं बैठ सकते। इसके एतराज़ के जवाब में रईस ने अपनी मजबूरी बयान की थी। ऐना की समझ में ना आता वो यहाँ आई क्यों थी, क्या चीज़ थी जो इसे इस तरफ खींचती थी। इन खुले खुले कमरों, गोल बरामदों, बेहद वसी और इस सहन में जिसमें बहुत फैले आम और जामन के दरख्त थे, वहाँ बिछी चारपाइयाँ, इनके दरमियान पड़ा हुक्का, कोने में लगा तन्नूर जिसे शीदो सारे शाम दहका कर रोटियाँ पकाने बैठ जाती थी। यहाँ आते जाते लोग, हवेली का लकड़ी का बड़ा सा गेट पूरा दिन खुला रहता। कुछ भी तो ऐसा ना था जो इसे अपनी तरफ खींचता। फिर मैं यहाँ आई क्यों? लाइट चली गई थी, इसने उठकर खिड़कियाँ खोल दी। दोपहर के 2:30 बजे थे। सहन पूरे का पूरा धूप से भरा था। माँ जी और बीबी ज़ैनब दरख्तों की छाया में आ बैठी थी। बीबी ज़ैनब की गोद में अहमद था जिसे वो तवातुर से पंखी झल रही थी। दूसरी पंखी नूरा के हाथ में थी जो पायथी पर अटकी माँ जी को हवा दे रही थी। अप्रैल का इख्तिताम था। आम के दरख्त बूर से भरे थे जिनमें छुपी प्यासी कोयल बस कभी कभी ही कूकती थी। ऐना की निगाह इस छोटे से घर पर जा रुकी जिसके एक दीवार के साथ कलियों का झुंड फैलकर दूर तक चला गया था। यह घर बज़ाहिर तो इसी घर का हिस्सा मालूम होता था, मगर यह रईस की चाची का घर था। इसके चचा का कई बरस कबल इंतकाल हो चुका था। बेटा कोई था नहीं, बस 2 बेटियां थीं, दोनों शादीशुदा। चाची इससे मिलने आई थी। 4.5 फीट के मिन्हिनी से वजूद को देखते ही एहसास होता कि उसने सारी उम्र दुख की फसल ही काटी है। इतनी आहिस्तगी से बोलती थी कि ऐना को इनका कोई जुमला समझ में नहीं आता था, बल्कि वो बोली ही कहाँ थी। बमुश्किल 5 मिनट बैठी, अहमद को 1000 रुपया दिया, दुआ दी और चली गई। इनके जाते ही माँ जी ने झपट कर अहमद की नन्ही सी मुट्ठी से वो नोट खींचा, अहमद पर से वार कर बीबी ज़ैनब को थमा दिया। ऐना हक्का बक्का रह गई। लाइट आ गई थी, वो खिड़कियाँ बंद करके हट गई। यहाँ दोपहर कुछ ज़्यादा ही तवील होती थी, किसी तरह गुजरने में ना आती। तभी दरवाज़ा खुला। बीबी ज़ैनब अहमद को लिए अंदर आई। इसे भूख लगी है। ऐना ने अहमद को गोद में ले लिया। ज़ैनब वापस चली गई थी। वह अहमद को फीड करवाते इससे बातें करती रही। वो सो गया तो इसे काट में लिटा दिया। खुद कुर्सी पर बैठकर इसे देखने लगी। कुछ किताबें ही ले आती तो वक्त काटना आसान हो जाता। इसने आंखें मूंद कर सर पोस्ट से टिका दिया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो यही समझी बीबी ज़ैनब अहमद को लेने आ गई हैं। कदरे उकताए हुए अंदाज में गोया हुई थी। बीबी वो सो गया, इसे यहीं रहने दें। आने वाला इस पर झुक गया। और मैं कहाँ रहूं? ऐना ने पट से आंखें खोली। आप इस वक्त? यूं ही मुझे लगा तुम बोर हो रही हो, बस हर काम अधूरा छोड़कर चला आया। बोर तो मैं वाकई हो रही थी, यहाँ वक्त बिल्कुल नहीं कटता। तो वापस चलें? वापस? उसने कुछ लम्हे सोचा, नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली, जल्दी क्या है? वो उठने लगी थी। रईस ने कुर्सी के दाएं बाएं हाथ रख लिया और शरीर से लहजे में गोया हुआ, कोई जल्दी नहीं। ओहो, ऐना ने सर्जनिश की। निगाह भटक कर दरवाजे तक गई। वो जो कोई भी थी खुले दरवाजे के बीचों बीच खड़ी ने घूर रही थी। इसकी निगाहें एक पल को ऐना की निगाहों से टकराई तो इसे झुरझुरी से आ गई। उसने बेअख्तियार रईस के सीने पर हाथ रखकर धकेला था। रईस को इसके चेहरे के तासुरात अजीब से लगे। इसकी नज़रों के जाविये पर बेअख्तियार पलट कर देखा, वहाँ कुछ भी ना था। क्या हुआ ऐना? वहाँ रईस, वहाँ दरवाजे पर कोई था। कौन? ऐना ने जवाब नहीं दिया। उठकर दरवाजे तक आई, बाहर झांकने लगी। कोई भी ना था। कौन था भाई? कोई मुलाजमा होगी। रईस उसके पीछे चला आया। मुलाजमा नहीं, मुलाजमा तो नहीं थी इस भरी दोपहर में, और कौन हो सकता है? वो सरसरी अंदाज में बोला, मगर वो सरसरी ना ले सकी। रात को सोने के लिए लेटी तो वो चेहरा इसकी निगाहों के सामने था। अगरचे इसने एक पल को ही देखा था, मगर वो इसे बड़ी वजाहत से सोच सकती थी। बेहद गोरी रंगत, जाज़िब नज़र, नकोश, और इनसे छलकता दुख, परेशानी, तकलीफ और कुछ और भी। कुछ ऐसा जो ऐना महसूस तो कर रही थी, समझ नहीं पा रही थी। इसने बातों ही बातों में माँ जी से पूछा था कि दोपहर में कोई इनसे मिलने आया था। उन्होंने यही कहा, इतनी दोपहर में कौन आएगा? तो वो कौन थी जो इतनी अचानक क्यों चली गई? नोरा, एक बात पूछूं तुमसे? वो ऐना के पाँव दबा रही थी। ऐना पाँव समेट कर उठ बैठी। पूछे बाजी, सच सच बताओगी? झूठ क्यों बोलूँगी? ये चाची वगैरह के साथ कोई झगड़ा है रईस लोगों का? इसके अचानक सवाल पर नोरा गड़बड़ा सी गई। नहीं नहीं तो
नूरा ऐना की तंबीह आवाज़ पर वो संभल गई। झगड़ा कोई नहीं है, बस चाची खुद ही किसी से नहीं मिलती। इसकी बेटियां कहाँ ब्याही हैं? एक तो साहिवाल में है, दूसरी बाजी खदीजा। एकदम चुप होकर यूँ पलट कर देखने लगी, कोई इनकी बात सुन ना रहा हो। कोई नहीं है नूरा, तुम क्या बता रही थी खदीजा के बारे में? कुछ नहीं बता रही बाजी, आप मुझसे पूछे भी ना। कन्नी कतरा गई है ना, कुछ लम्हे इसे देखती रही। ठीक है कहकर लेट गई। जहन उलझ कर रह गया था, बहुत सी रिवायती कहानियां जहन में चकराने लगी थी। अच्छा ये तो बताओ, खदीजा यहीं रहती है? इसका मुतजस्सिस जहन इधर उधर के नुक्ते ढूंढ रहा था। जी। किसका शौहर है? दोनों की बनी नहीं। अब मैं चलती हूँ, मुझे बड़ी बी ने बुलाया था। फौरन खड़ी होगी, इसके शौहर का तो बताती जाओ। फिर वो न जाने सोच की किन अथाह गहराइयों में उतर गई थी। तंदूर में रोटियां लगने के अमल को बेहद दिलचस्पी से देख रही थी। माई का झुर्रियों ज़दा हाथ रोटी को कई बल दे जाता, मगर मजाल है रोटी टूटी। और जब वो रोटी लगाने को झुकती तो ऐना का दिल धक से रह जाता। इसे लगता माई का धान पान सा वजूद पूरे का पूरा दहकते तंदूर में जा गिरेगा, मगर वो बड़ी जल्दी से रोटी लगाकर सीधी हो जाती। फ़ज़ा में गर्म रोटी की सूंधी सूंधी महक फैली हुई थी। बाजी ऐना आपका टेलीफोन है। नूरा भागी हुई आई थी। अहमद उठ गया। नहीं, तुम इसके पास जाओ, इसे कहकर अंदर चली गई। फ़ोन नूर का था। ये तुम गांव जाकर क्यों बैठ गई हो? छोड़ते ही पूछने लगी, क्यों मेरा गांव आना मना है? वो हंसी थी। गांव कैसा है? जैसे सारे गांव होते हैं। हाँ, हमने तो जैसे सारे गांव देखे हैं। सुनो, गांव की जो सबसे अल्लड़ और खूबसूरत मुटियार है, इसे मेरा सलाम कहना। रसीवर अफसाद के हाथ में था। ये सैयद नूर की फिल्मों का गांव नहीं है। यूं ही छोटी छोटी बातों में कॉल लंबी हो गई थी। बाजी बाजी, नूरा हरासा से भागी आई थी। क्या है? अहमद काका कमरे में नहीं है। क्या मतलब कमरे में नहीं है? ऐना ने उलझ कर पूछा। मैं आपको टेलीफोन का बताने आई थी, वापस गई तो काका कार्ट में नहीं था। वो लरज रही थी। माँ जी के पास देखो, बीबी जैनब ले गई होंगी। इधर भी नहीं है। बड़ी बीबी तो मेरी खाल उधेड़ देंगी। वो रोने लगी। नूर, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। रसीवर रखकर बर्क रफ्तारी से कमरे में आई। कमरा खाली था। आन वाहिद में पूरे घर में कोहराम मच गया। ऐना की हालत बुरी थी, खुद को संभाल रही थी। घर के अंदर से इतनी जल्दी कौन ले जा सकता है? मैंने कहा था तुम अहमद के पास जाओ, तुम वहाँ क्यों नहीं गई? नोरा पर उलट पड़ी। मैं तो बस थोड़ी देर को मिनमिना कर रह गई। अरे कोई रईस को तो बताओ, माँ जी ने दुहाई दी थी। चौधराइन ज़रा रुक जाएं। बीबी जैनब की मध्यम आवाज़ उभरी थी। रुक जाऊं? मेरी जान जा रही है। पहले इधर तो आए, उधर देख आए हम दोनों। बीबी जैनब की आवाज़ कुछ और धीमी हुई। माँ जी ने चौंक कर जैनब की तरफ देखा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। इतनी जल्दी कोई हवेली से बाहर नहीं जा सकता। हवेली के अंदर तो तुम खुद जाओ, माँ जी ने कहा था। ऐना उलझ कर दोनों का चेहरा देखने लगी। इससे पहले कि जैनब बाहर निकलती, चाची अंदर आई और इनके बाजुओं में अहमद था। ऐना ने झपट कर अहमद को इनसे ले लिया। चाची है आपके पास? वो खतीजा। चाची ने शर्मिंदा सी निगाह माँ जी पर डाली। बस ठीक है, शाम को रईस आएगा तो बात करेंगे। माँ जी ने बेहद रुखाई से कहा। चाची सर झुकाकर बाहर निकल गई थी। माँ जी, अहमद चाची के पास क्यों था? और खदीजा, ऐना ने पूछना चाहा। दरमियानी बोल उठी, अहमद को मेरे पास छोड़ जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ। ऐना को मजीद कुछ पूछने की जुर्रत न हुई थी, मगर रात को वो रईस से जिक्र किए बिना न रह सकी। खासी देर से लौटा था, इसके पास खासी देर से आया था। हालांकि वो जानती थी रईस काफ़ी देर पहले वापस आ चुका था। इतनी देर से कहाँ थे आप? माँ जी के पास था। लेट कर आंखें मूंद ली। थक गए हैं? हाँ। फिर ऐना का हाथ पकड़कर अपने माथे पर रख लिया। सर तो दबाओ यार। ऐना धीरे धीरे सर दबाने लगी। बहुत मसरूफ़ रहने लगे हैं। अहमद भी पूछ रहा था। ऐना ने हल्का फुल्का सा लहजा अख्तियार किया। अच्छा, वो बोलने लगा है? हल्का सा मुस्कुराया। जितना आप मसरूफ़ रहने लगे हैं वो चलने भी लगेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ऐसी भी बात नहीं मोहतरमा। इसने माथे से ऐना का हाथ हटाकर अपने हाथ में जकड़ लिया। मुझे एहसास है मैं तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा, मगर ये काम के दिन है, निगरानी तो करना पड़ती है। जानती हूँ, इसीलिए तो शिकवा नहीं करती। अभी भी शिकवा नहीं करती हो? उसने घोरा बेख्तियार हंस दी। बस यूं ही हंसती रहा करो। अच्छा एक बात तो बताएं। पूछो। ये खदीजा के साथ क्या मसला है? क्यों? रईस ने चौंक कर इसे देखा। आपको पता है आज वो? हाँ, मुझे माँ जी ने बताया है। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया? बस इसके हालात ऐसे हैं, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है इसलिए। मगर तुम, ये चंद घड़ियाँ मिली हैं, इन्हें भी यूं ही ज़ाया करोगी? रईस का लहजा यकलख्त बदल गया था, मगर रईस ने इसे आगे बोलने नहीं दिया था। किसी ने बेहद आहिस्तगी एहतियात से ऐना के पहलू से अहमद को उठाने की कोशिश की थी। ऐना अभी नीम गनूदगी में थी, तभी एकदम गर्दन घुमाकर देखने लगी
और दूसरे लम्हे तीर की तरह उठ बैठी। तुम? वो जो अहमद पर झुकी हुई थी घबरा कर पीछे हट गई। तुम कौन हो? ऐना ने तेजी से अहमद को अपनी गोद में समेटा था। उसके चेहरे से घबराहट बिल्कुल गायब हो गई थी। वो टिकटिकी बांधे ऐना को देख रही थी और ऐना उसके चेहरे पर वो सारे तासुरात देख सकती थी। दुख, खो देने का एहसास, तकलीफ, हर तासुर इसकी गहरी सियाह आंखों से मुतरश्शे था। और वो एहसास जिसे ऐना समझ ना पाई इन सियाह नगीनों से छलकती बेताशा नफरत थी। ऐना खौफजदा से होकर पीछे खिसक गई। तुम खदीजा हो? उसकी आंखों से सारे तासुरात यकलख्त गायब हो गए। जितनी सरहद से सियाह नगीने पानियों में डूबे थे। बेचारगी, बेबसी का एहसास इसके हाथ हरकत में और इसके सामने फैल गए। अब भी हाथ फैलाए उम्मीद की कैफियत में डूबी मुंतजिर थी। ऐना चाहती थी बच्चे को सीने में भींच कर भाग जाए, किसी को मदद के लिए पुकारे या इस औरत को यहाँ से चले जाने के लिए कहे, मगर कुछ ऐसा था जो इसे रोक रहा था। फिर वो इस औरत का चेहरा नीज के फैले हाथ देख रही थी। फिर इसके वजूद में जुम्बिश हुई, आगे को झुकी और ना चाहते भी न जाने क्यों बेहद आहिस्तगी के साथ नन्हे मुन्ने वजूद को खदीजा के बाजुओं में डाल दिया। खदीजा ने बेहद बेयकीनी से पहले इसे फिर बच्चे को देखा और दूसरे पल दीवानावर बच्चे पर झुकी बेतहाशा चूम रही थी, सीने से लगा रही थी, जोर जोर से रोते न जाने किस किस को पुकार रही थी। अली, तौकीर, आशी। इसकी आवाज़ में टूटते कांच की छनक थी। हर पुकार गोया अर्श से टकराती थी। ऐना सरतापा कांप कर रह गई। अहमद जाग गया और अब इसकी गिरफ्त में रोने लगा था, मगर वो गोया इसकी आवाज़ सुन ही ना रही थी। ऐना तेजी से बेड से नीचे उतरी, इसकी गिरफ्त से इस अहमद को छुड़ाना चाहा। इसने तेजी से इसका हाथ झटका, अहमद को सीने से लगाकर भींच कर खड़ी हो गई। तुम्हें नहीं दूंगी, ये मेरा है। ऐना का दिल धक से रह गया। इस तरह भी अंदाज में खड़ी हो गई। खदीजा, इसे मुझे दे दो, ये मेरा बच्चा है। बकवास मत करो, तुम सब कुछ मुझसे छीन लेना चाहती हो। पहले तुमने रईस को छीनना, अब मेरा बच्चा लेना चाहती हो। हलक के बल चीखी थी। ऐना इसके किसी जुमले पर गौर करने के काबिल न थी। वो सिर्फ रोते हुए बच्चों को इससे वापस लेना चाहती थी, मगर वो औरत दीवानगी की हदों को छू रही थी। क्या हुआ है ना, कौन है? माँ जी और बीबी ज़ैनब सरासीमा से अंदर दाखिल हुई। अंदर की सूरत हाल देखकर चकरा गई। खदीजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी आवाज़ में नागवारी और तहक्कुम था। खदीजा इन्हें देखकर सहम गई। नहीं, मेरा है ताई। बकवास मत करो बीबी, बच्चा ले लो इससे। बीबी ज़ैनब ने कदम आगे बढ़ाया। खदीजा तड़प कर दीवार से जा लगी। खबरदार बीबी, अगर कदम आगे बढ़ाया तो मैं किसी को नहीं दूंगी। इसने बच्चे को कुछ और भींच लिया। जो रो रो कर बेहाल हो रहा था, अपने 3 खा गई, अब इसे तो बख्श दे डायन। बीबी ज़ैनब का भरपूर थप्पड़ इसके चेहरे पर पड़ा था। मैंने खाए हैं। खदीजा ने बेयकीनी से देखा, इसका चेहरा घूम गया था। गिरफ्त तब भी कमज़ोर ना पड़ी। मैं डायन हूँ। 9 महीने अपनी कोख में संभाला था मैंने, अपने खून जिगर से सींचा था। तकलीफ सही थी मैंने। तुम कहती हो मैंने खाए, मैं डायन हूँ। तुम लोग डायने हो। रईस को छीन लिया, मुझ पर सौकन ले आई। ये डायन है, तुम डायन, मेरी किस्मत डायन है। बीबी ज़ैनब इससे बच्चा छीन रही थी और वो इसे धक्के दे रही थी, चीख रही थी। और ऐना के अंदर कहीं एहसास हमेशा से मौजूद था। माँ जी का गांव के नाम से कतराना, रईस का हमेशा टाल जाना इसे बहुत पहले से शक में मुब्तला कर गया था। फिर भी एक पल को लगा कदमों तले ज़मीन नहीं। अहमद की आवाज़ ने इसे दूसरे ज़्यादा देर बेऔसान नहीं रहने दिया। इसने एकदम आगे बढ़कर बीबी ज़ैनब का बाजू पकड़कर पीछे धकेला। बस करें बीबी। इसकी आवाज़ में बला की सख्ती थी। फिर वो खदीजा की तरफ पलटी। खदीजा, ये बच्चा तुम्हारा है, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खदीजा इसका चेहरा देखने लगी। तुम सच कहती हो? हाँ। इसकी आवाज़ में बला की नरमी थी। लेकिन देखो वो रो रहा है, इसकी आवाज़ बैठ रही है। अगर इसी तरह रोता रहा, खुदा न खास्ता इसे भी कुछ। नहीं। खदीजा लरस गई। इसने गिरफ्त ढीली करके बच्चे को देखा और ऐना का जी चाह बच्चे को इसकी गोद से झपट ले, जो बाकायदा हिचकियाँ ले रहा था। वो खुद नहीं जानती थी वो क्यों इतने सब्र से काम ले रही है। इसे भूख भी लगी है। मैं इसे तुम्हें दे दूंगी, मगर अभी इसे मुझे दो, मैं इसे दूध पिला दूं। अगर ये मेरा है तो दूध तुम क्यों पिलाओगी? खदीजा ने हैरत मासूमियत से पूछा और वहीं दीवार के साथ आलती पालती मारकर बैठ गई। मैं पिलाऊंगी। अब वो अपनी कमीज़ उठा रही थी। इस औरत की बेबसी पर ऐना की आंखें एकदम भर आई। इसने बैठकर नरमी से उसका हाथ थाम लिया। मैंने वादा किया है ना, तुम्हें दूंगी, अब इसे मुझे दे दो।